Hello, good afternoon, everyone. Am I audible? Hello, am I audible to everyone? Okay. Good afternoon. I'm Arunakar. I welcome you all in the third day of this 5 days workshop on mental health and well-being, psychological intervention. As you all know, that this workshop is being organized to talk about mental health. First day, we had a detailed discussion on mental health by Dr. Dinesh Kataria. He explained in a beautiful manner what is mental health and what are different types of distortions in mental health and what is the possible treatment. As you all know that mental illness is universal phenomena and anyone can be in the grip of the mental illness. So we have to talk about the mental illness if it occurs. Yesterday, our speaker was Dr. Kishan Soni. He explained gender difference in the mental illness and mental health. He specifically elaborately spoke about the women's mental health and its challenges. In this continuity, today, the third day of this international workshop, we have Dr. Manjeet Bihal with us. She is addressing a very sensitive issue, that is sexual violence and its impact on survival. Violence in any form is not at all acceptable. It is always detrimental to mental health of a person. It may be verbal or it may be by action. It is definitely a crime against a person for whom that violence is being done. And if we talk about sexual violence, definitely it is not acceptable in any degree, in any form. It's sure that sexual violence is harmful not only physically, but it breaks a victim socially, emotionally, financially. We can say that ये victim की आत्मा को तार तार कर देता है. With this shattered spirit, which halts and makes existence not only difficult, but sometimes impossible. Victims may go for suicidal. WHO defines sexual violence as a serious public health and human rights problem with both short and long-term consequences on women's physical, mental, sexual, and reproductive health. Whether sexual violence occurs in the context of any intimate relationship, intimate partnership, within the large family or community, or during times of conflict. It is deeply violating and painful experience for the survivor. Sexual violence is a worldwide problem, and when we talk about India, here we are having also this problem and scenario is very scary. The latest government India released September 29, 2020, data is by National Crime Records Bureau that says that India recorded an average of 87 rape cases daily in 2019. I'm repeating, 87 rape cases daily in 2019. And we have crossed 2020 and now we are in 21. And we will be soon having the latest data. And overall, 4,05,860 cases of crime against women during the year. I'm repeating this. We are having 4,05,861 cases of crime against women during the year, and rise in crime rate against women is an increase every year. We have memories of Nidhya, gang rape and brutalization of Dalit women in Uttar Pradesh, Hathras. We have a few names. But this data is only recorded data. It means those reports are in the police station. And think about the data which is not reported by this or that reason.
And if we go for unreported data, we came to know that it is larger than the reported data, and it is about 99% of the cases. And this data doesn't include the males and boys. And if you talk about the sexual violence of boys, it is 1 in the 6. Most importantly, conviction rate in India is only 27%. It is such a sensitive topic that about which only experts can speak in a manner that it should touch everyone's heart, and listeners comes to know the depth of the violence. Today, we have Dr. Manjeet Rihal with us. She has already joined. Hello, Dr. Manjeet Rihal. Hello. Hi, Aruna. Hello. Fine. She is here with us to share her views on sexual violence and its impact on survivors. She calls it a pandemic, and this is silent pandemic. We have seen the pandemic like Corona. Everybody knows about Corona. But how it is silent pandemic, she will explain. Before Dr. Manjeet starts to share his views, I would like to share her brief biodata with all of you present here. Dr. Manjeet is Associate Fellow, British Psychology Society. She is outreach practitioner, Rape Crisis Center, England and Wales. She is working for more than 20 years with domestic and sexual abuse victims and survivors in UK. During the first lockdown, she is recognized as one of the heroes, hashtag our Corona heroes, for going above and beyond to support the community. She is a renowned speaker of national and international webinars and seminars on mental health. Seminars on how to end violence against women and girls, how to respond any disclosure of rape and sexual abuse. She has organized well-being programs for elderly Asian women. Dr. Manjeet Rihal, I welcome you. I invite you to share your views. Dr. Manjeet Rihal, please. Thank you, Aruna. Thank you very much for the intro. But today I am feeling nostalgic today. Hisar and Aruna and Day Scholar. And I would like to share today, Aruna and me, we were students together. We did MA and MPhil together. She was Day Scholar. We were hostelers. We used to go to have dinner or lunch with her, and her mom used to cook. So I just remember all things today. So it's made me so past memories or nostalgic I'm feeling today. So it's my privilege today to be with you. And first of all, I would like to say thank you, Aruna, and thank you, DAV College. Those you have made an effort to bring this topic and to allow me to speak about this topic. As we know, in India, things happen, we deny, we don't talk about these things. We do talk about lots of things, but we don't talk about this subject matter that's very, very important nowadays. So I would, like you have seen, my subject matter is little bit heavy today. Not little bit, I would say heavy. So I would give you a little bit of warning signs. If anyone directly or indirectly impacted on sexual abuse, rape, or domestic violence, if you have any trigger warnings, you can either leave for 5 minutes, go outside, have deep breathe, come back, or in the end, we will give some time for question and answer, or I can stay a little bit behind if you have any
triggers emotions or you want to talk about, I would really, I would love to have chat with you. So please just be aware of, don't keep your emotions, just go away a little bit, 2-3 minutes and come back. So this is my kind of warning. So another thing is, I would like to dedicate my session today to all the victims, all survivors, and all who did not survive, who survived during the rape and sexual abuse. So I would dedicate my session today to all these survivors, or some of them are thrivers now. So, okay. So another thing is that subject matter won't be that interesting. I won't have interesting slides. You will see it will be really heavy. We have to discuss, and I am with youth, young population now. So because we don't know the answers, I want these youth to come together to let us know what can be done to end this pandemic. Okay, so I really would like you to open your eyes, open your ears today, and just write down, make notes if you can, make notes if you want to have any questions. We will have question answer time. So please do get into the topic, get into here now. Okay, so we will start. Aruna, shall I say in English or Hindi? You are mute. Bilingual. Okay. Okay. So, and in the end, you will have one questionnaire, one quiz. If you will pass, you will get certificate from your college. All these young students, that will be very, very good for your CV when you go any of interviews. You can show that we have attended this kind of seminar. These are very, very good, and give credits to your CV. So you have to open your eyes and ears to listen to this topic, and we need to come into some conclusion. As I am a practitioner, practitioners, what they do, I'm not academic, I won't go as much as theory or as much as statistics. I would like to go response, how we can come together, how we can end this silence, and how we can end this abuse if we can. Okay, so that's my response, and I would like everybody to come together. I hope my slideshow will work. It's working. Oh, yes. Okay. So I said this silent pandemic. I don't know why it came into my mind, because I work with victims of rape and sexual abuse, and I hear every day, I don't want to tell anyone, I don't want to tell someone, I can't tell someone because this is very heavy. So they become silent. So I made this silent pandemic. So we have heard this nearly a year now, no more than a year now. So we are in this COVID-19, this pandemic. So we all know what happened during pandemic, how many people died, how many people are ill, and it might impact on their lives, all their life now, doctors are saying. But one good thing come out with this pandemic is how we all came together during, we found these new techniques. We are connected to all, I think, international. So, and all globe, all world came together to find the ways, to find the vaccine, to find the medicine. Can you name any country those they did not come together to make these? And very, very surprisingly, within 10 months, they prepared vaccine. And that vaccine, always it takes more than 8 to 10 years. You know the history, polio and whatever vaccine they made, it takes
8 to 10 years normally, but now 10 months they made this vaccine, and I got the vaccine injection as well last week. So why I want to discuss here, why I want to stress here, when world can come together, when world want to do something, when world want to end something, world do out and about and everything they can do to make it happen. Yeah, so that is Corona COVID-19. पर अब मैं इस साइलेंट पेंडेमिक की बात करूंगी जो इसके बारे में, इसके इम्पैक्ट्स, सेक्सुअल अब्यूज. अरुणा mentioned in her introduction how sexual abuse can impact on the lives of the people, not only the victim, not only the survivor, all family, all community get impact of sexual abuse. So how? And people get killed during rape. We know Nirbhaya Kand, and Aruna mentioned that. We all know that. Even it's 8 years now, but it's always in our hearts. It broke our heart, or all world's heart. So that is the impact this sexual violence and rape makes. Why world is not coming together? Why countries are not coming together to end this? Is it not important? Is it not important for our daughters and for our women and girls, even boys? I won't deny that boys get sexual abuse and rape too. So why we are not coming together? So today is a call now. This is a call. We need to do something. We need to make it happen. We need to listen to survivors and victims, how we can make it happen, how we can make it open, we can bring it into light, don't make it into silent. So that's a strange thing in the world. So today I really want some answers from young population and you academics, you are here today. So today's aims and objectives are: one is, what is sexual abuse and who are the abusers? Sometimes when we talk about who are the abusers, oh, he is a teacher, he is a priest, he is a पंडित, वो तो नहीं कर सकता, वो हमारा बड़े हैं, वो ऐसे हैं, है ना? So आज हम डिस्कस करेंगे who are the abusers. और थोड़ा सा मैं स्टेटिस्टिक्स पे जाऊंगी, not that much because I said I am a practitioner, I don't want to go towards theory and much more. So what are the common impacts? The common impacts हैं जो survivor पे पड़ते हैं, मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगी, और हम क्या कर सकते हैं इसको एंड करने के. So end of this session I would like you to learn these 4. ओके, और इन दीज 4 में ही आपके जो क्वेश्चंस हैं आपको एंड में करने, इन दीज 4 में ही क्वेश्चन होंगे. सो व्हाट सेक्सुअल अब्यूज इज? सम पीपल know, we know what sexual abuse is. It's any kind of sexual contact or behavior, and that is happen without consent. I would focus a little bit more on consent, what consent is, and do we know in India? Do we learn in schools? Do we learn in colleges what consent is? And what consent age in India? So consent क्या है? Permission है एक दूसरे की. अगर 2 parties हैं, boyfriend है, girlfriend है, wife है, husband है, any 2 people, उनको आपस में permission, sex से पहले आप permission लेंगे, that is consent we call. So India में consent age है 18 years. So these kind of sexual assault and sexual activities, those are forced sexual intercourse, child molestation, incest. I don't know how many people know incest means, how family members, even fathers, even brothers, they can be rapists, they can abuse their children, sisters, brothers, cousins, teachers, anyone can be abuser. So there is no limit. We have heard from the news, you hear every day, कोई ना कोई, कभी कोई आ जाता है, कभी
है ना, priest है, so anyone can be abuser. So overall definition, if we say sexual abuse की or sexual assault की, so physical, psychological, emotional violation in the form of sexual act. Yeah, and abused by someone without their consent. So sexual abuse kya hai? Without the consent of other party, one person is forcing or abusing. So there are two things, forcing and abusing. So they do without consent. So for forms of sexual violence, I don't know in India, I didn't read much about Indian law, but I know a little bit of Indian law because मैं India में भी मैंने काम किया है. So I was one of the members of Crime Against Women Cell. So हम यहाँ पे UK में हम लेते हैं forms of sexual violence के rape है, oral rape है, sexual assault, childhood sexual abuse, sexual harassment है, rape within relationship, marriage, grooming, sexual exploitation, forced pornography, forced marriage, ritual abuse. So you can read all these things. So these are forms of sexual violence. Is that okay all? Am I going very fast? So a little bit statistics, when I said we will discuss about how globally this thing is happening, Aruna touched a couple of things in India. किस तरह का यहाँ पे डेटा है, कितने लोग यहाँ पे सेक्सुअली असोल्टेड हुए हैं. सो ग्लोबली हम देखें, अगर ग्लोब में ऑल कंट्रीज का हम देखते हैं, 35% ऑफ वीमेन एक्सपीरियंस सेक्सुअल अब्यूज. 35%. सो अब आप काउंट करिए, आई डोंट नो कितने लोग आप पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे. सो 35%, 1 in 3 women and girls have experienced sexual abuse globally. So, जैसे कि रिपोर्टेड का अरुणा ने बताया था, बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हुए, जैसे निर्भया कांड, इस तरह के कांड जो बड़े बड़े कांड हुए इंडिया में रिपोर्ट हुए, लेकिन जो वर्ल्ड वाइज रिपोर्टिंग का परसेंटेज है ओनली 11% रिपोर्ट होता है ये. So 35% women and girls experience sexual abuse. अगर हम ये देखें, only 11% cases are reported. So you can imagine how many more people, how this data will go. 1 in 2. As India, there is one study, 53% of girls and boys have experienced sexual abuse. It was studied by Women and Social Welfare. So that's, if you see unreported things, so very, very strange data. If you read in Google, you will see lots of data, and it will shock you, and it will prompt you to do something now. This is a time now. Or only 40% of women out of जिन women का sexual abuse and any abuse होता है, domestic violence, sexual abuse होता है, सिर्फ 40% women जाती है help के लिए. सिर्फ 40% women and 60% people, those उनको कोई भी वो help नहीं लेते हैं, किसी तरह का healing process उनके साथ नहीं होता. So we will discuss क्या impact होते हैं उनके end में. So pandemic, जो हम बात करते हैं pandemic की, हमने कई, यहाँ से भी मैंने बात किया, हमारे यूके इस कंट्री से भी बात किया, बोलते हैं कि पेरेंट्स बोलते हैं और हमारे बच्चे सेफ हैं, दे ऑल आर एट होम. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. चिल्ड्रन आर एट होम, पीपल आर एट होम, बच्चे रिस्क पे नहीं है, पेपल नहीं है. पर अगर हम ये डेटा आगे देखेंगे, 92% of sexual abuse and rape or sexual assault happen within families, those who know the victims. 92%. So where is the safety? हमारी वो सेफ्टी नेटवर्क सारे लोगों के पास है. आई नो some people लकी हैं, जो 92% जो केसेस होते हैं सेक्सुअल अब्यूज के, people उनको जानते हैं, उनके abusers उनको जानते हैं. So that is another thing हमने आज उसके बारे में डिस्कस करना है कि किस तरह से हम इसको बचा सकते हैं. So pandemic में कहीं भी आप डेटा जाके देख लो, 500% केसेस इंक्रीज हुए. इंडिया में लोट्स ऑफ हेल्पलाइन बनाई, बहुत अच्छा इंडिया में भी काम कर रहे हैं चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के ऊपर, चाइल्ड अब्यूज के ऊपर. उन्होंने भी पाया कि 505 फोल्ड
हेल्पलाइन की कॉल्स ज्यादा बच्चों ने किया, उनमें से हेल्पलाइन कॉल्स आई, उनमें से 40%, नियरली 40% बच्चे थे जो कि उनको मोलेस्टेशन के कारण, उनको यौन सेक्सुअल अब्यूज के कारण वो कॉल कर रहे थे बच्चे, उनको पता नहीं था कैसे एक्सप्रेस करेंगे, बट वो हेल्पलाइन को कॉल कर रहे थे, मींस दे वांटेड सम हेल्प। सो 500%, किसी भी पेंडेमिक की आप बात देख लो, चाहे वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ, चाहे हमारा पार्टीशन हुआ, पार्टीशन में कितनी विमेन और गर्ल्स का हमारे सेक्सुअल अब्यूज हुआ, एवरी टाइम व्हेन पेंडेमिक हैपेंस, व्हेन वर्ल्ड में कुछ ऐसा होता है, सबसे पहले विमेन एंड गर्ल्स का ही सेक्रीफाइस होता है। सो दैट इज अनदर थिंग यू कीप इन माइंड। सो एक सर्वे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सर्वे किया था, रिपोर्टेड केसेस, 11% वर्ल्ड में रिपोर्ट होते हैं केसेस, इंडिया में एक सर्वे के अकॉर्डिंग 99% of cases go unreported, 99%. It is another alarming sign for us. सिर्फ 1% लोग रिपोर्ट करते हैं, वो भी जो कि हाईलाइट हो जाते हैं, निर्भया जैसे जिस इस तरह के कांड जो कि आपको हिला देते हैं, वो कांड आए 1%। और विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने स्टडी किया था, उन्होंने भी पाया था कि बहुत सारे बच्चे हैं, और जो बहुत सारे परसेंटेज है, मोर देन 90% पीपल डोंट डिस्क्लोज, दे डोंट डिस्क्लोज दैट, और दे डोंट रिपोर्ट एनीवन। और अब हरियाणा में हम बात करें, हम हरियाणा में, मैं एक ये अभी इसमें डेटा में पढ़ रही थी, तो हरियाणा में 45% इंक्रीज हुआ है सेक्सुअल अब्यूज का, रेप एंड सेक्सुअल अब्यूज 45%। मैं हरियाणा से हूँ, मैं गर्व करती हूँ, मेरी फैमिली यहाँ पे है और हम लोग आज हरियाणा से बात कर रहे हैं। पर जब मैंने ये पढ़ा, बहुत ही दुख लगा। और आज फिर मैं आपको चैलेंज करूंगी, आज फिर मैं आपको इनवाइट करूंगी कि किस तरह से हरियाणा में हम लोग एक तरह से बहुत रिलीजियस हैं, बहुत हम गॉडेसेस, भगवान को मानते हैं, हमारी देवियां हैं, और ये कहाँ पे हम जा रहे हैं, क्या हम ये कर सकते हैं? 45% इंक्रीज, ऑलरेडी 1 in 3 women experience sexual abuse, और उसके अलावा 45% आधे और बढ़ गए। सो मोर देन 50% अगर हम देखें तो गर्ल्स और विमेन आज हमारी खतरे में है। आज क्यों हमारे पेरेंट्स, जिनके जो इवन छोटी छोटी बच्चियों के भी माँ बाप है, डरते हैं बाहर लड़कियों को अकेले भेजने से, नहीं हम अकेले नहीं भेजेंगे, नहीं रात हो गई है। सो उनकी फ्रीडम कहाँ पे है? लड़कियों के लिए तो हमेशा से पेंडेमिक था, हमेशा से लॉकडाउन था, हमने तो सिर्फ 2 महीने का लॉकडाउन यहाँ देखा है, पर लड़कियों के लिए तो ऑलवेज है। और उनके माँ बाप, उनकी उनकी फीलिंग्स देखो, आप बहुत सारे लोग आज लड़कियों के माँ बाप होंगे यहाँ पे जो सुन रहे होंगे आप, सो आप अपनी फीलिंग्स देखिए, क्यों हम डर रहे हैं आज? सो क्या आज वक्त नहीं आया हमारा कि हम अवेयर हों, हम जागे, हम अलर्ट हों? जैसा कि हमने बताया, 92% अब्यूजर्स विक्टिम को जानते हैं, इसलिए भी ये बहुत हार्ड हो जाता है रिपोर्ट करना। एक पर्सन है, उसका अंकल है, उसका भाई है, उसका कजन है, उसके साथ अब्यूज कर रहा है, वो जो विक्टिम है अपनी फैमिली वालों को लव करता है, सिर्फ वो चाहता है कि ये अब्यूज रुक जाए, मेरी फैमिली में लूज ना करूं। सो बहुत ही हार्ड हो जाता है उसके लिए, किसको बताए वो, क्या पीपल उसका विश्वास करेंगे, क्या लोग उसको मानेंगे? सो इस तरह से वो अनरिपोर्टेड चला जाता है। सो कन्विक्शन रेट आगे हम देखें तो, जैसे कन्विक्शन है, अगर कोर्ट में केस गया है तो कितने लोगों को पनिशमेंट मिलता है, कन्विक्शन मिलती है ओनली 27%। 27% पीपल को कन्विक्शन होता है इंडिया में, बाकी जो कितने कितने परसेंट है, 77 और 73 गो विदाउट एनी चार्जेस। बहुत सारे इंटरेस्टिंग केसेस में पढ़ी थी, जजेस ने किस तरह से जजमेंट दिया, फिर विमेन जजेस आई, उन्होंने किस तरह से जजमेंट दिया। सो बहुत सारी चीजें हैं जो हम रिपोर्ट नहीं करते हैं, और हम चुपचाप इसको साइलेंट और बनाया हुआ है, इसको पेंडेमिक बनाया हुआ है। सो अगर हम यहाँ यूके में थोड़ा सा देखें, किस तरह से 20% विमेन
यहाँ भी इवन वेस्टर्न वर्ल्ड है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही स्ट्रिक्ट है यहाँ पे, फिर भी यहाँ पे 20% ऑफ वीमेन, 1 in 5 women and 4% ऑफ men सेक्सुअल अब्यूज होता है उनके साथ भी, चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज। सो इस ऑल वर्ल्ड वाइड, जैसे अरुणा ने बताया, ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, ऑल वर्ल्ड की। लेकिन हमारे इंडिया में जो हमारा स्टेटिस्टिक्स बताता है, इंडिया का जो रेट है रेप केस, सेक्सुअल अब्यूज वेरी वेरी हाई देन अदर कंट्रीज। और उसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं हम लोग आगे ये बात करेंगे। सो यूके में मैं कन्विक्शन रेट बताती हूँ, जो केसेस यस हो जाते हैं, जिन्होंने रेप किया 50% उनको कन्विक्शन रेट होता है, 50 फिर भी चले जाते हैं बिकॉज इट्स 1% टू अनदर पर्सन। सो बहुत हार्ड हो जाता है ये जजमेंट करना। सो अब हम, जैसे कि हमने बताया, हमारा एम है क्या इम्पैक्ट्स हैं। अगर आप इम्पैक्ट्स अगर हम आज डिस्कस करेंगे तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि मेरे को आज कुछ करना चाहिए। सो इसलिए आज मैं हर बार बार ये कहूंगी कि आज ये एक जरूर आप अपने अंदर लेके जाइएगा कि जरूर आप कुछ ना कुछ इसके लिए करेंगे, जो उसको साइलेंट ही बनाएंगे, जो हमारी बहनों और हमारी बेटियों और बहुओं को बचाएंगे आप। सो क्या इम्पैक्ट होते हैं? सबसे पहले शेम, गिल्ट, डिसबिलीफ, एंगर। एवरी विक्टिम ऑफ रेप एंड सेक्सुअल अब्यूज फील्स शेम। उनको ये लगता है कि मैंने ही कुछ गलत किया है। गिल्ट फील करता है। वो लड़की आज मेरे को निर्भया अभी भी याद आ रही है, जो अपनी लाइफ और डेथ में थी, डेथ बेड पे थी, अपने फादर को कह रही थी सॉरी पापा। still break my heart if we hear that thing. So उसको अभी भी वो अपने आप को गिल्टी फील कर रही थी, हालांकि उसका कोई कसूर नहीं था। वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहती थी, लेकिन फिर भी वो एक शेम और गिल्ट फील कर रही थी। और उसके बाद एंगर, हमने यहाँ देखा है, हमारे जो क्लाइंट्स हैं, हमारे से जो हेल्प लेने आते हैं, मोर देन 90% ऑफ हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनमें एंगर होता है। इतना एंग्री होते हैं कि क्यों ऐसा हुआ हमारे साथ। सब बहुत एंग्री होते हैं वो, है ना। और उनके बाद कुछ पीपल है सेल्फ हार्म भी करते हैं, कुछ पीपल है सुसाइड भी करते हैं। हमने देखा इंडिया में बहुत सारी खबर सुनी है। कुछ पीपल ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स। और फिर अटैचमेंट, अगर उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है, फैमिली मेंबर ने किया था, एक अटैचमेंट का ऑलवेज बिलीव करेंगे या नहीं करेंगे, वो इस तरह का ट्रस्ट इश्यू उनके पास हमेशा आता है। एजुकेशन और वर्क, कई बार हम सोचते हैं ये बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है, ये बच्चा, हमने तो सारा कुछ एफर्ट कर लिए, बट वी डोंट नो समटाइम्स उनके पीछे का कॉजेस क्या होता है। मैं यहाँ पे एडल्ट्स के साथ, ज्यादा एडल्ट्स के साथ काम करती हूँ, मैं बच्चों के साथ नहीं करती, बट मेरी कोलीग्स हैं, हम बच्चे को भी हम हेल्प करते हैं। बट जो एडल्ट्स मैंने यहाँ पे पाया, जो इंडिया से भी गए थे, यहाँ से माइग्रेट होके गए थे, कईयों ने ये स्टोरीज बताई, when they were 9 or 10 years old, they had sexual abuse from their very very close relatives, close cousins. No one listened to them. किसी को उन्होंने बताया भी नहीं, चुपचाप शादियां करके चले गए। आज वो 50s और 60s में है कुछ लोग, और उनके साथ उनकी मेंटल हेल्थ को क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि उन्होंने पीछे, अब बोलते हैं कि हमने क्यों नहीं किया, हमने क्यों नहीं बताया, और क्या इम्पैक्ट आए। कहते हैं हमने स्टडीज में, हम जब नंबर नहीं आते थे, हमारे पेरेंट्स भी हमको डांटते थे, किसी ने अंडरस्टैंड नहीं किया हमारे को कि हमारे साथ पीछे हुआ क्या। सो उसके बाद कई बार बिहेवियर प्रॉब्लम है, साइकोलॉजी के, आप यहाँ कुछ लोग बैठे होंगे तो कई बार हम देखते हैं बच्चे बता नहीं सकते हैं, शो करते हैं, उनका बिहेवियर शो करता है कि कुछ ना कुछ अंदर से हुआ है, बट हम फिर इग्नोर कर देते हैं कि क्यों ऐसा वो बिहेव कर रहा है। सो क्या है, डिप्रेशन, एंजाइटी एंड सुसाइड केसेस बहुत सारे आते हैं, मेंटल हेल्थ इज इम्पैक्ट। सो हमारे जो क्लाइंट्स हैं, मोर देन 70% ऑफ हमारे क्लाइंट्स में डिप्रेशन होता है। और मैंने अभी बताया कुछ पीपल जो मैं एडल्ट्स पे कर रही हूँ, डिप्रेशन उन पे। एंड सम पीपल है, आज भी वो अपने अब्यूज वहां बताना नहीं चाहते डॉक्टर्स को, अभी भी कहते हैं हमको डिप्रेशन है। एंड व्हाट डॉक्टर्स एंड साइकियाट्रिस्ट डू, उनको हैवी डोजेस ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं, और उनको अंडरलाइन फैक्टर पता नहीं है कि क्या उनके साथ हुआ है, क्या ट्रोमा वो अभी तक
उनके साथ है जो उन्होंने ट्रोमा फेस किया, लेकिन वो डिप्रेशन की टैबलेट्स देते हैं और वो प्रॉपर से डायग्नोस नहीं होता, और डायग्नोस प्रॉपर से नहीं होगा तो हम क्योर कैसे करेंगे? सो दैट इज द इम्पैक्ट all survivors and or victims they feel. उसके बाद फिजिकल इम्पैक्ट्स है, यू है प्रेगनेंसीज हो जाती हैं, समटाइम्स कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, समटाइम्स इंजरीज और डेथ्स वी हैव सीन, कितने सारे डेथ केसेस हमारे सामने हुए हैं, और दोबारा से रीविक्टिमाइज हो जाते हैं। जो बच्चों जिनका बच्चों का सेक्सुअल अब्यूज हुआ, वो जब बड़े होते हैं आइदर वो अब्यूज करते हैं और उनका अब्यूज होता है, आइदर पार्टनर्स और लेटर ऑन देयर लाइफ। और जो फेटल आउटकम्स हैं, डेथ बाय रेप, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस के कारण, और कितने सारे रेप हो जाते हैं। कई बार हमारा ओनर आ जाता है कि हमारा सोसाइटी का ओनर किस तरह से पेरेंट्स कई बार किल कर देते हैं, कई बार पीपल अपने आप कर देते हैं बिकॉज ऑफ शेम एंड गिल्ट दे फील। उनको लगता है कि हमारा ये कसूर है, और हमको ये बताया भी जाता है कि आपका ही कसूर था, आप क्यों बाहर गई, आपने क्यों ऐसे किया, आपने क्यों फैशन करके गई थी। यस, so ये सारी चीजें, ये इम्पैक्ट्स हमारे विक्टिम्स और सर्वाइवर्स पे पड़ता है। सो अब इज दैट ओके, और हाउ यू फीलिंग? It's okay, ma'am. Okay, so that's really good. And if you have any feelings, you can write it down if people have pen and paper with them. So आगे हमने जैसे बताया था, why silent, why this become silent pandemic, or why this abuse is silent, why it doesn't come out. अगर आपने एक किसी भी रोड पे किसी को देखा है, किसी का पर्स छीन के ले गया, तो आपको जो जिसका पर्स चोरी हुआ है या छीना गया है, आपको उसके ऊपर तरस आएगा, आप एम्पैथी करेंगे, सारे जने बोलो कि इसका पर्स चोरी हो गया, इसको मैं हेल्प करूं। ओके, अगर आपको किसी ने ये बताया कि मेरा रेप हो गया, सेक्सुअल अब्यूज हो गया, कोई भी उसके सामने नहीं आएगा, है ना, बताएगा भी नहीं, पहली बात सुनेगा भी नहीं, उसको देख के भी चला जाएगा। सो व्हाई दिस इज अ डिफरेंस। और साइलेंट क्यों बनाए? हमारी फैमिली, हमारी कल्चरल बैकग्राउंड, हमारी फैमिलीज हमको आज नहीं नहीं आप बताओगे नहीं, अगर बताया तो क्या होगा, शादियां नहीं होगी, आगे आगे हमारे बहन भाई हैं उसकी शादियां नहीं होगी। सो बहुत सारे फैमिली फैक्टर्स आ जाते हैं, कल्चरल हमारा कल्चर आ जाता है कि नहीं नहीं आप छुपा लो, चुपचाप छुपा के बैठ जाओ जैसा कि कुछ हुआ ही नहीं है। और अब साइलेंट क्यों बना, वो कुछ बताया ही नहीं, तो अब्यूजर ने तो बड़ा कुछ खुश हुआ वो तो, कि मेरे साथ कुछ मैंने एक लड़की के साथ किया, दो के साथ किया, तो तीन भी कर सकता हूँ, चार भी कर सकता हूँ, तो साइलेंट बना रहा हो, है ना। और कई बार एज क्या है, बच्चा होता है, बच्चे का अब्यूज होता है, बच्चा बता भी नहीं सकता है, उसको वर्ड्स भी नहीं पता है कि किस तरह से मैं एक्सप्रेस करूं, एंड साइलेंट बना रहता है वो, है ना। एक फियर होता है। बहुत सारी कम्युनिटीज हम देखते हैं, आई नो हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज बहुत ज्यादा प्रोग्रेस किया है, बहुत हमारी लड़कियां आगे जा रही हैं, पढ़ रही हैं, उनको कॉन्फिडेंस भी आया है। स्टिल बहुत सारी कम्युनिटीज हैं अभी भी हमारे इंडिया में, कई बार पोर कम्युनिटीज कह लो, कई बार जो बच्चे काम करते हैं लोगों के घरों में, या कई बच्चे होमलेस हैं, कई बच्चे बैगर्स हैं, वो अगर बताएंगे तो उनमें से बहुत सारे तो उनको सुनेगा भी नहीं कोई, और उनको फियर भी होगा, अगर मैंने बताया कोई बड़ा था जिसने किया तो मेरे को मार भी देंगे, सो फियर के कारण वो साइलेंट हो जाता है ना। कई बार जेंडर आइडेंटिटी है, अभी आजकल ये भी आपने सुना होगा, गे सेक्सुअल, गे बाइसेक्सुअल और लेस्बियंस, इफ उनको भी सेक्सुअल अब्यूज एंड रेप होता है। अगर आप वो कुछ बताएंगे तो बोलोगे आपका ही कसूर है, व्हाई यू आर, है ना, आप डिफरेंट क्यों है ना। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आपको ये साइलेंट बनाती हैं एक विक्टिम को। they cannot report and they cannot disclose to anyone. Some myths हैं हमारे, बहुत सारे myths हैं कि किस तरह से साइलेंट हो जाते हैं विक्टिम्स। उसके बाद कई मैसेजेस हैं हमारे, कितने तरह के मैसेज लोग देते हैं, अरे अरे वो लड़की तो ऐसी थी, है ना, वो कैसे कपड़े डालती थी, तो इट्स ऑल राइट, उसके साथ हुआ है तो, है ना। और वो लड़की बेचारी अपने आप को वो समझेगी कि नहीं,
मेरा ही कसूर था ये, मैं चुप ही रह जाऊं। सो एंड डिसेबिलिटी एक बहुत बड़ा कोज है, आपने भी देखा होगा, जो पीपल डिसेबल हैं, जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है, कोई व्हील चेयर पे है, कोई अपने आप कुछ कर नहीं सकता है, डिसेबल है, कितना वो जाके बताएगा, उसको अपने सर्वाइवल का, उसको अपनी फिक्र है, वो कहेगा कि अगर मैं ये बता दिया तो मेरे को कौन लुक आफ्टर करेगा, सो वो बन जाता है। और उसके बाद है विक्टिम ब्लेमिंग, सो मैनी ब्लेम्स we have in our society. Everything we blame to victim. We never blame to victim of any burglary or any, whatever you have seen, घरों में कोई burglary हो जाती है, उसका कोई भी हम उसको blame नहीं देते, burglary हुई है, नहीं 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 तुम्हारा कसूर नहीं है, तो चोर का कसूर था, है ना ये। लेकिन सेक्सुअल अब्यूज, रेप होता है तो वो विक्टिम पे ब्लेम आ जाता है। सो ये अनदर थिंग है हमारे को आज हमने ये इसके बारे में सोचना है। और कई और चीजें, डिनाइल है, सोसाइटी डिनाइल करती है, और शेम, सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स हैं, हमने इसको साइलेंट बनाया है ना। बहुत सारे थ्रेट्स भी यूज होते हैं, है ना, देखा है हमने, आई डोंट वांट टू मेंशन दीज। उसके अलावा और क्या है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, आई डोंट नो, बहुत सारे लोगों ने आजकल तो टीवी पे भी दिखाने लगे हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कैसा होता है, किस तरह से कॉम्प्लेक्स है। अगर एक लड़की विक्टिम बन के गई है, पहले तो पुलिस, फिर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, सालों साल उसके केस में चले जाते हैं। अभी पीछे ओनली 2 years अगो निर्भया कांड में उसकी मम और डैड को दिखाया था, उसके अभी जो उसके अब्यूजर्स थे उनको अभी सजा मिली थी। 1 year हुआ है या 2 years हुआ है, आई थिंक ओनली 1 year, 8 साल के बाद। आप ये सोचोगे 8 साल, अभी भी पेरेंट्स का इम्पैक्ट ऑल लाइफ है उनका, उन्होंने अपने बच्चे को खोया है। और कितनी सारी निर्भया हैं ना, प्लीज सॉरी ना, मैंने कोई मेंशन नहीं किया, बट बहुत सारी जिनके साथ हुआ है, उनके पेरेंट्स हैं, आज वो इतने इतने सालों तक जस्टिस सिस्टम के चक्कर काटते हैं, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। जस्ट थोड़ा सा उनको सुकून हो जाए कि उनको एक पनिशमेंट मिली है कि आगे वो लोग दूसरी लड़कियों को ना करें, लेकिन सालों साल लग जाते हैं। और इतना जो कॉम्प्लिकेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, और हमारे यहाँ लीगल सिस्टम भी नहीं है, लीगल एड अभी शुरू किया है इंडिया ने, कुछ अभी अभी देना शुरू किया है, बट आई डोंट नो कितना प्रैक्टिकल है वो। और क्रिमिनल कोई लीगल एड नहीं है। अगर मैं पोर हूँ, अगर मेरे पास मनी नहीं है, मैं कैसे सोच लूंगी कि मैं आगे सब केस को लेके जाऊंगी, है ना। सो इस तरह के रिस्पॉन्सेज हैं और हमको साइलेंट बना देते हैं। और सबसे बड़ा कारण क्या है ये, व्हाट इफ नो वन बिलीव्स मी। बहुत सारे, अभी मेरे को कुछ विमेन बताते हैं, कहती मैंने मेरी मम्मी को मैंने ना हिम्मत करके बताया, 4-5 years तक लगातार ये हो रहा था, मम्मी को बताया तो मम्मी ने बोला डोंट यू डेयर टेल एनीवन। तो उस लड़की को ऐसे चुप करवा दिया गया। कहती है तू, तेरे को ऐसी लज्जा नहीं आती, तेरे को वो कितनी हेल्प करता है, तेरे साथ इसने ऐसे किया, वैसे किया, वैसे किया। सो उसको किसी ने बिलीव नहीं किया, चुपचाप अपने काम पे लग गई जैसा कि कुछ नहीं हुआ उसके साथ। सो दीज आर द रीजंस ये साइलेंट बन गया। और पेंडेमिक ये हमेशा से ही है और साइलेंट भी बना। तो सम रिपोर्ट करते हैं, सम सर्वाइवर्स रिपोर्ट नहीं करते, है ना। सो वो हमने डिस्कस किया। ओके, सो ये थोड़ा सा था, हमने हाईलाइट किया सेक्सुअल अब्यूज क्या है, उसके इम्पैक्ट्स क्या है, व्हाई आई वेंट थ्रू। I want you to see, I want you to go through these things, empathize these things, empathize the people, empathize parents, empathize girls and boys, they have experienced and still they are experiencing, कोई उनके पास कोई चारा नहीं है। So आपको ये knowledge होगी तो आप जाके किसी की मदद करोगे और आप उसके लिए कुछ ढूंढोगे, कारण ढूंढोगे, उसके लिए कुछ कुछ ढूंढोगे कि हम किस तरह से इसको स्टॉप करें, है ना। सो आज मैं क्वेश्चंस लेकर आई थी, आज हमारे सामने 4 क्वेश्चंस मैं लेके आई, इसके आंसर्स भी हमने फाइंड करने हैं। व्हाट आर आवर वैल्यूज एंड वेयर डू दे कम फ्रॉम। आज हमारी वैल्यूज क्या है, मैं एक हरियाणवी हूँ, मैं एक ऐसी फैमिली से हूँ, मेरी वैल्यूज है। आप सबसे मैं पूछना चाह रही हूँ, मेरी वैल्यूज क्या है आज क्या वैल्यूज है। मैं चुपचाप इसको सह रही हूँ
या सह रहा हूं मैं, कहाँ से मेरी वो वैल्यूज आई हैं। एंड दूसरा मैंने क्या किया, व्हाट डू आवर कम्युनिटीज वैल्यूज लुक लाइक इन प्रैक्टिस। मेरी वैल्यूज मेरी कम्युनिटी की, मैं अपनी कम्युनिटी के बारे में बहुत ज्यादा प्राउड करती हूँ। मेरी कम्युनिटी है, हमारी इंडियन कम्युनिटी, हमारा रिलीजन है, हमारा हमारा बिलीफ सिस्टम है, हमारा कल्चर सिस्टम है, बहुत बहुत रिच है रिच, हम कोई डिनाई नहीं करते। बट हमारी वैल्यूज क्या है आज, और हाउ हम इस कम्युनिटी को बिल्ड करें, हमारी वैल्यूज को क्या लेके आए कि हमारी वैल्यूज को हम बिल्ड करें। और लास्ट वन है नॉट लीस्ट, हाउ डू वी रिस्पोंड व्हेन समथिंग हैपेंस व्हिच इज ऑपोजिट टू आवर वैल्यूज। हम क्या करेंगे जो हैपन हो जाए हमारी वैल्यूज के अगेंस्ट जा रहा है। सो ये 4 क्वेश्चंस हैं, प्लीज आप नोट करिए, हमने इसके बारे में क्या करना है। और अगेन, young population, we have really we proud of you, and हम आपसे बहुत सारी उम्मीद रखते हैं और आप हमारे को ये आंसर जरूर देंगे। सो ये क्वेश्चंस क्यों बने, क्यों मैंने कहा कि कम्युनिटी वैल्यू, हमारी वैल्यूज क्या हैं, क्योंकि हमारी वैल्यूज, हम ये सोचते हैं हमारी रिच वैल्यूज हैं, लेकिन जब हम थ्योरी और प्रैक्टिस में जाते हैं कंप्लीटली डिफरेंट। मैं उसके लिए थोड़े से एग्जांपल्स दूंगी आपको आज। सो वेरी इंटरेस्टिंगली, मैं हमारे एक फ्रेंड है यहाँ पे वाइट, और वो एक मंदिर में गए, वो गिटार बजाते हैं, तो उसको ना वो अपने शूज डालने लगे और कहते कि मैंने ना शूज गिटार पे पैर रखने लगा। तो मंदिर का पुजारी, वो हमारे साथ मंदिर गए जिस देखने के लिए, तो मंदिर का पुजारी ने उसको मना कर दिया, नो नो नो, गिटार है ये, रिस्पेक्टफुल थिंग है ये, हम उस पे पैर नहीं रखते। तो वो मेरे को पूछ रहे थे आके कि क्यों क्यों ऐसा है। तो हम लोग बातें कर रहे थे। पर आज मैं ये इसलिए मेंशन कर रही हूँ कि गिटार एक रिस्पेक्टफुल थिंग है हमारी, एक बुक रिस्पेक्टफुल थिंग है, हमारे पैर लग जाते हैं। आज भी आप अपने बच्चों को सिखाते हो, हमने भी अपने मदर फादर से सीखा था कि आप बुक पे हाथ पैर लग गया तो आप ऐसे करेंगे, करेंगे ना, हम गिटार पे करेंगे, एनीथिंग पे करेंगे। लेकिन एक लड़की, एक औरत, उसको पैर दबा के भी चले जाते हैं। सो वो वैल्यू कहाँ पे है, जस्ट प्लीज इमेजिन, वो कहाँ पे वैल्यूज हैं। उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जिसने हमको जन्म दिया है, जिसने वो गुरुओं को उसको जन्म दिया है, उसको हम किक मार के हम चले जाते हैं। किसी ने कुछ नहीं बोला कि ये भी एक रिस्पेक्टफुल चीज है, नो नो, इसको इसको भी एक हमने एक मत्थे पे लगाना है, नो। सो इसलिए वो थ्योरी एंड प्रैक्टिस में इतना डिफरेंस है। सो इसलिए बोला कि हमारी वैल्यूज कहाँ पे हैं, और जो वैल्यूज हैं थ्योरी में, हम लोग बहुत सारी वैल्यूज लेके आते हैं। जो हमारा रिलीजन है, हम कहते हैं हमारी फिलोसफी है, हमारे सोशल बिलीफ्स हैं, है ना। हमारा बिलीफ है कि हम नवरात्रों में हम लड़कियों की पूजा करते हैं नवरात्रों में, उसी नवरात्रों में रेप भी होते हैं, उसी नवरात्रों में सेक्सुअल अब्यूज होता है। फिर मैंने उनको भागड़ कर दिया। अच्छा बताओ कि जो साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल है वो हर सेमेस्टर में होता है। Something happening in the background. 15 से एनुअली है। फिर दोनों साथ में कौन सा उनको म्यूट कर रहे हैं प्लीज। पेपर है और उसके Okay, so मैंने बोला तुमने कितने yeah. ऑफर तो हम लोग हो रहे हो ना, दोनों में ही है, प्रैक्टिकल तो है हमारा, अकॉर्डिंग टू सिलेबस दोनों में है, दोनों में है। अब आप बताओ मैं क्या करूं? नहीं दोनों में ही आएगा आप पहले से प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल पेपर एक बार होने वाला बात है, पर वो आपने करवाया। So हमारी थ्योरी एंड प्रैक्टिस में बहुत सारा अंतर है। हम किस तरह से किसी को हम ये बोलते हैं कि हम दोनों में आएगा। एक बार बोलो ना, केमिस्ट्री में सिलेबस में एक बार मेंशन। हाँ तो हमारे तो दोनों में है। 2 बार का ही है। so हम एक तरफ से इक्वालिटी की बात करते हैं कि हम लोग डॉक्टर मंजीत प्लीज अनम्यूट योर माइक। मैंने तो कर लिया। ओके सॉरी
I got time to breathe. So it's positive in a way. So और हमारी थ्योरी में क्या है, हम इक्वल हैं, हम विमेन को हमने इक्वल राइट दिया है, लेकिन प्रैक्टिकली प्रैक्टिस में हम जानते हैं कितने इक्वल हैं। आज भी हम कितने इक्वल हैं, किस तरह से पावर इम्बैलेंस हो रहा है ना। सो किस तरह से वो हम लोग पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज कई बार बोलते हैं सेक्सुअल अब्यूज हुआ है क्योंकि मेन और पीपल कंट्रोल नहीं कर सकते अपनी अर्ज को। ये कंट्रोल अपनी अर्ज का नहीं है, ये है पावर एंड कंट्रोल। एनी अब्यूज हैपेंस ओनली बिकॉज ऑफ पावर एंड कंट्रोल। सो कहाँ पे हम ट्रीट कर रहे हैं इक्वली। सो ये भी हमारे थ्योरी एंड प्रैक्टिस में कंप्लीटली डिफरेंट है। और क्या है, नॉट स्पीकिंग आउट, है ना। हमारी वैल्यू, चुप रह गए हम, फिर भी हमारी वैल्यूज क्या हुई, हमने देखते रहे। वो कभी बाई स्टैंडर्ड ही बने, ओके लुक दिस इज नॉट राइट। कितने लोग आगे आके बोलते हैं, कुछ लोग अभी भी बोलते हैं, बट हाउ मैनी ऑफ वी गो एंड सेव आवर चिल्ड्रन एंड गर्ल्स एंड अगर और हमारी विमेन, है ना। सो हम उनको चुप रह के एक सह रहे हैं, उसका मतलब क्या है, हम विक्टिम को और विक्टिम होने देने जा रहे हैं, और जो अब्यूजर्स हैं हम उनको फ्री कर रहे हैं। ओके यू आर फ्री, नो वन विल टच यू। सो ये है हमारी थ्योरी एंड प्रैक्टिस। जितना हम साइलेंट करते हैं इस अब्यूज को, उतना ही साइलेंस में पनपता है ये, है ना। सो अब क्या है हमारे पास, ऐसी कौन सी हम लाइट स्विच लेके आएंगे, हमने उसको स्विच ऑन करना है और लाइट आ जाए, ताकि वो अब्यूजर है थोड़ा सा डरे, अब्यूजर है थोड़ा सा उनको लेस कॉन्फिडेंट हो और दूसरी बार वो करने में डरे। सो ये चीजें हैं, क्वेश्चंस हमने बनाए, क्या हमारी ये वैल्यूज हैं, किस तरह से डैमेज कर रही हैं ये हमारी वैल्यूज, क्यों हमारी दोहरी हम वैल्यू में जी रहे हैं हम लोग। सो और भी बहुत सारे एग्जांपल है। एक प्रोग्राम में देख रही थी, लाइव नहीं है बट मैं एक वीडियो पे देखती हूँ आजकल, एंड रियली आई वांट यू टू थिंक व्हाट वी थिंक अबाउट दीज थिंग्स। उसमें एक द वॉइस प्रोग्राम आता है, वेरी वेरी टैलेंटेड चिल्ड्रन इंडिया के बच्चे। सो ना ना बंद कर दो बेटा, आगे तो फिर आपको पता है कैसे क्लास लेंगे। इंडिया में ये प्रोग्राम चल रहा है, ये वॉइस नहीं आप बेटा, लोग जितना आता है ना बस वो लिख लो। मेरे को छोड़ के गए हैं वो, इसको बंद कर दो, बैग के नीचे रख दो इसको। वो एक बड़े टैलेंटेड चिल्ड्रन इंडिया में, इवन 5, 6, 7 इयर्स, इतनी अच्छी अच्छी वो सिंगिंग करते हैं, कैसे करते हैं। तो मैंने एक दिन देखा था, वो एक ऐसा वीडियो कुछ आ गया, किसी ने भेजा। तो उसमें क्या था, एक लड़की है 15, 16, 17 इयर्स की, जजेस बैठे हैं, और ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लेडी, ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स होती हैं, है ना। सो वो ब्यूटीफुल है, और वो एक जज है जो वेरी यंग जज, क्या आया उसके ऊपर फूल बरसा रहा है, ओ यू आर ब्यूटीफुल, ओ यू आर ब्यूटीफुल, आई विल प्रपोज यू, और प्रपोज करने के लिए एक उसको फूल दे रहा है। और अब आप ये सोचिए, वो जो लड़कियां वो कंपटीशन के लिए आए हैं, हम ऑल जब कंपटीशन में जाते हैं हम विन करना चाहते हैं, और वहां पे वो जज है, उसके पास आज कितनी पावर है, कितना कंट्रोल है, और वो जज आज अपनी पावर को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। आप उसकी वॉइस को सुन रहे हो, ना कि उसकी ब्यूटी को देख रहे हो। और आज जो ये मॉडल है, रोल मॉडल है हमारे, वो हमारी यंग पॉपुलेशन के रोल मॉडल है। तभी हमारी यंग पॉपुलेशन जाएगी और लड़कियां जो सुंदर तो सुंदर है ऐसे करके और बोलेगी। सो किस तरह से हमारा समाज ये जा रहा है। बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, बट जब हम छोटी छोटी चीजों को ये एक पिन पॉइंट करेंगे, हम उनको लाइम लाइट पे लाएंगे कि नो दिस इज नॉट राइट। किस तरह से हमारी जो कंपिटिटर्स हैं वो करेंगे, कैसे करेंगे। फिर और था एक और बड़ा ब्यूटीफुल, उसने लड़के ने गाया, बहुत अच्छा गा रहा था। तो फिर उसको जज और जो वो प्रोग्राम वाले ऑर्गेनाइजर पूछते हैं, ओ तूने कोई लड़की लुड़की पटाई क्या। दैट वाज द थिंग्स हैपनिंग, प्रोग्राम जो सारी इंडिया देख रहा है। सो it surprised me, shocked me, so I don't know how you felt. So that's power and control की मैं बात कर रही थी। और मैं जो ये हमारे जो टॉक्स हैं, जो हमारे, तो किस तरह से हमारी टॉक्स हैं वो बात कर रही थी। क्योंकि ये जो बातें हैं, जो ये पटाई लड़की, इस तरह की बातें हमको क्या सिखा रही हैं,
है ना, क्योंकि हम अच्छी बातें, हमारा माइंड, हमारा ब्रेन, हमको सबको पता है ब्रेन थ्योरी, ब्रेन जो अच्छी बातें हैं बहुत स्लो पिक करता है, ब्रेन जो ऐसी बातें हैं नेगेटिव बातें बहुत जल्दी पिक करता है ना। सो दैट इज द वे हमने इस चीज के बारे में थोड़ा सा सोचना है। आई डोंट नो हाउ, ये मैं आपके ऊपर छोड़ूंगी। अभी मेरी स्लाइड क्यों नहीं जा रही आगे? अरुण? देखो आपकी तरफ से ही होगा ये। हाँ हो गया। यस, सो हमने 4 क्वेश्चंस में लेके आई थी। सो आई व्हाट आवर वैल्यूज कहाँ से आती हैं? सो हमारे क्या, हमने कीवर्ड्स ऐसे लेके आए कि हम अपने बारे में अपनी वैल्यूज को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बनाएं, है ना। ये वैल्यूज हमारी, जो हमारे रिलीजन्स हैं, ये बहुत अच्छा रिलीजन, हिंदू रिलीजन, आज हिंदू रिलीजन की बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें, अमेरिका, इंग्लैंड, इतना कुछ, इंडिया से ले लेके, इंग्लैंड से ले लेके, भागवत गीता के कोट्स लिखे हुए हैं, इवन अमेरिकन लोग इतना सारा कुछ अच्छी सी चीजें वो ले रहे हैं। हमारे बिलीफ्स तो वो थे, हमारा रिलीजन तो वो था, हमारी फैमिली ट्रेडिशन तो वो थी, हमारे कोई लोग नहीं लगाते थे गांव में, अभी तक भी है ना, कुछ गांव में ऐसे थे, आज क्यों ऐसा आ गया है? सो उसके बाद हमारे सेगवे क्वेश्चन क्या, फोन है ना, अपनी मदर वाला फोन फंडामेंटल बिलीफ्स हमारे क्या हैं, हमारी किस तरह से हो हमारी, गया था कॉल पिन लगा के। किस तरह से हमारी ये कम्युनिटीज के ये हम अफेक्ट कर रहे हैं, ये जो बिलीफ्स हैं। सो ये बिलीफ्स कहाँ से अब आ रहे हैं, ये जो हम क्यों पुराने बिलीफ्स छोड़ते जा रहे हैं, क्यों हम ये भूलते जा रहे हैं कि जो आज की लड़की, आज का लड़का हमारा कल का युवा है, हमारा कल का लीडर है ना। सो उसके साथ हम किस तरह से वो करें, किस तरह से कम्युनिटी बनाएं। So, अगला था हमारा व्हाट डू अवर कम्युनिटी लुक लाइक इन प्रैक्टिस, कैसी हमारी प्रैक्टिस में हमारी कम्युनिटी वैल्यूज हैं, किस तरह से हमारी हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है, किस तरह से बिहेव करते हैं हम। और किस तरह से हमारी ये क्यों नहीं प्रैक्टिस में आ रही, क्या चीजें हैं जो हमने आज ये सोचनी है, हमने आज उनको रिस्पॉन्स में लाना है ना। तो किस तरह से जो उसको स्टॉप करना है हमने, है ना। सो कहाँ पे वो गैप है जो हमारी बिलीव्स और हमारी प्रैक्टिस में, हमारी जो थ्योरी एंड प्रैक्टिस में जो गैप आ रहा है, कैसे हम उसको नैरो करेंगे, और जो इसका गैप है ज्यादा, कौन उसका बेनिफिट ले रहा है। और हमको आज भी पता है ये जो उसका गैप है, उसका बेनिफिट कौन ले रहा है, जो अब्यूजर्स हैं, जो परपेट्रेटर्स हैं, जो अब्यूज कर रहे हैं, वो आज भी उसका फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि हमारी वैल्यूज जा रही है। हमें क्या है, ये लड़की, मेरी बहन पे कोई आंख ना उठाए, पर मैं कितनों की बहनों को मैं छेड़छाड़ कर सकता हूँ, है ना। सो ये चीजें आज हमारी जो गैप है, ऐसा कुछ जा रहा है हमारा। और जो सफर कौन करना है इस गैप में, कौन सफर कर रहा है, विक्टिम्स, सर्वाइवर्स एंड उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिलीज, उनके कल्चर्स। या तो ये वाला पार्ट कर लियो या ये वाला कर लेना, और पढ़ना तो तेरे को ये भी पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। I'm sorry मंजीत, I think we have to put up with that, है ना? I think we have to put up with that. Actually, everyone is It's new all right. with It's technology. sometimes things are टाइप के लिए कर लेना। ये इमोशन वाला है, इसको तू कर लेना। तो आपने ये सारा वो किया है, साइलेंट किया के लिए रोबोटिव्स वाला आसान है। Yes, we have kept them on silent, but they keep on unmuting these things and they are talking and they are not listening. No, you can have control of this. Yes, you know, we you have can mute control. them. But I don't know somehow what is happening again and again. उनको मैसेज भी दिया है कि इसको आप म्यूट कीजिए। बारे में 5 लाइक। So okay, but चल anyway, है ना। हेलो मैडम उर्मिला, प्लीज अपना माइक जो है वो ऑफ कीजिए। सॉरी, आपका नाम लेके मुझे कहना पड़ रहा है। So and आगे हमारा क्या है, how can we build a community that embodies our values, किस तरह से हम अब अपनी कम्युनिटी को बिल्ड करना है। So कभी भी आज भी शुरू करते हैं, आज भी अच्छा दिन है ना।
और किस तरह से हमने अपनी वैल्यूज को इफेक्टिव बनाना है आज, अब, और किस तरह से हमने प्लान करना है कि कल मैंने क्या करना है, अगले मंथ मैंने क्या करना है, अगले ईयर क्या करना है, और 10 इयर्स में हमने क्या करना है, जो कि हमारी सोसाइटी में जो ये साइलेंस हो रहा है, जो हमारी सोसाइटी में अब्यूज चल रहा है, किस तरह से हमने उनको इफेक्टिव बनाना है, किस तरह से हमने स्टॉप करना है, किस तरह से मैंने योगदान करना है उसको एंड करने में। अगर हम ये सोच लें कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, अकेली क्या कर सकती हूँ, एक अकेले से ही शुरू होता है। हमारे गांधी जी ने, हमने उनकी हिस्ट्री सबने पढ़ी है, एक अकेलों ने शुरू किया था, कहते कारवां शुरू तो करो, पीपल साथ में आते हैं। सो आज ही, अभी से अगर हम सोचेंगे, प्लान बनाएंगे आगे का, किस तरह से हमने इन चीजों को प्रैक्टिस में लेके आना है, किस तरह से हमने अपनी वैल्यूज बढ़ानी है, किस तरह से हमने उनको, जिस तरह से हम अदर थिंग्स को रिस्पेक्ट देते हैं, एवरीथिंग को रिस्पेक्ट देते हैं, एक ह्यूमन वैल्यू को नहीं देते, वो हमने लेके आनी है। ह्यूमन वैल्यू लाइफ एक बार आती है, ये चीजें हर बार आ जाती हैं, लेकिन हम चीजों का कितना वो आज उनके बारे में कितना सोचते हैं। सो आगे हमारा है हाउ डू वी रिस्पोंड। अगर आज हमारा ये सबका फर्ज बनता है यहाँ पे, अगर वो वैल्यूज में नहीं हमारा चल रहा, हमारी वैल्यूज के अकॉर्डिंग, हमने क्या करना है, किस तरह से हमने रिस्पॉन्स देना है, ये भी हमने सोचना है। जैसा कि हमने सोचा साइलेंस क्या है, वो गैप को बड़ा करता है ना, और उन अब्यूजर्स को और चांस देता है अब्यूज करने के लिए, और वो हमारी जो वैल्यूज के ऑपोजिट हो जाता है। और उसके बाद ये हमने करना है कि जो ये सेक्सुअल अब्यूज या रेप या ऐसा अब्यूज है, उसको कारपेट के अंदर नहीं हमने डालें। डोंट स्वाइप अंडर द कारपेट, ब्रिंग इट टू लाइट, ताकि उनको पता चले, अब्यूजर्स को पता चले कि मैं बच नहीं सकता, है ना। और उसके बाद, है ना, किस तरह से हमने उस विक्टिम की हेल्प करनी है, किस तरह से उसको हेल्प करनी है, क्योंकि हो सकता है वो आज अपनी बात नहीं कह रहा हो, मैं उसकी वॉइस बन जाऊं आज, कल उसको मैं एनकरेजमेंट दूं, उसको मैं एम्पावर करूं, कल वो अपनी आवाज लेके अपने आप आए, पर आज उसकी मैं आवाज बन जाऊं। किस तरह से मैं उसकी हेल्प करूं कि उसकी जो जर्नी, हीलिंग जर्नी है, किस तरह से एक सेक्सुअल अब्यूज ही, और सारे अब्यूज इम्पैक्ट डालते हैं, एक सेक्सुअल अब्यूज ऐसा बहुत पर्सनल होता है, उसमें आदमी अपने आप को और औरत अपने आप को फील करते गिल्टी, अपने आप को फील करते कि मैं क्लीन नहीं हूँ, डर्टी हूँ। सो इस तरह की चीजें हैं जो उसकी हम मदद कर सकते हैं, एक चीज कह के कि आपका ये कसूर नहीं था, इट वाज नॉट योर फॉल्ट। Yeah, so these kind of things हम अपनी वैल्यूज में लेके आए। Okay, so अब क्या था प्लान, हम क्या कर सकते हैं आज के लिए, कल के लिए, परसों के लिए, 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, ठीक है। so मैंने 2 quotes यहाँ पे लिखी है मैंने, शायद मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, हो सकता है कि आपको भी अच्छी लगे। It is enough for evil to trump that good people do nothing. एक ये भी है कि हम चुपचाप भी उस बुराई को सह रहे हैं, है ना। जो एक चुपचाप सह लेना भी हमारी गीता में भी लिखा हुआ है, हमारे एनी सिख रिलीजन में, क्रिश्चियन में जो लिखा हुआ है, चुपचाप सह लेना भी एक तरह का हमारा इवल है। हम लोगों ने, हम बोले नहीं, वो भी एक तरह का क्राइम है एक, है ना। और दूसरा क्या है, व्हाट इज मोरली रॉन्ग कैन नॉट बी पॉलिटिकली राइट। हम पॉलिटिशियंस राइट कैसे कह सकते हैं कि हमने तो औरतों के राइट दे दिया, हमने रेप का नया कानून बना दिया, क्योंकि 2012 के बाद, निर्भया कांड के बाद नया कानून बना, उसको डेथ पनिशमेंट होगी, और उसके बाद ये जो मोरली रॉन्ग है उसको कहाँ पे खत्म करेंगे। एक हम सिर्फ गवर्नमेंट पे ही सोचें कि गवर्नमेंट के लॉ बने हुए हैं, हमने उस लॉ तक ले जाने के लिए क्या करना है, ये भी हमने ये सोचना है, किस तरह से वो लो तक पहुंचे, किस तरह से उसको हम जुबान दें, किस तरह से हम क्या उसको कहें जो आपको बता रहा है और इतना हिम्मत करके आपको बता रहा है। एक और मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि एक जजमेंट हुई थी
उसमें एक जज ने बोला था एक रेपिस्ट के लिए, जो जिसका रेप हुआ था विक्टिम को, कि तुम उसको राखी बांध दो, दैट वाज दैट रेपिस्ट पनिशमेंट। उसके बाद फिर औरतों को भी बोला गया, औरतें जज बनाई गई, उसमें कुछ रिमार्क्स ऐसे आए गए कि वो स्किन टू स्किन टच नहीं था, केवल जिप खोला गया था, कि वो सेक्सुअल अब्यूज नहीं है। तो इस तरह की चीजें कई बार है हमको। आज फार्मर्स का मैं देख रही हूँ, कितने सारे फार्मर्स, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनकी, कितने लोग वहां पे खड़े हैं। इस तरह की कई चीजें हैं, वो सपोर्ट वो भी लेके आ सकते हैं हम। जैसे निर्भया कांड के बाद हुआ था, बहुत सारे बॉयज गर्ल्स सब लोग आए थे आगे। बॉयज ने इतना सारा कॉन्फिडेंस दिखाया था, इतना सारा सपोर्ट दिखाया था, वो आज हमको फिर जरूरत है। हम क्यों ऐसा होने दें? होने से पहले अगर हम, ये हमारे पास सपोर्ट सिस्टम है तो होगा ही नहीं, प्रिवेंट कर सकते हैं, एक वैक्सीन बन सकते हैं हम, हैं? और हम किस तरह से उनको बताएं कि अब्यूजर लाइमलाइट में आए। सो ये सारी चीजें हम एक प्लान में ला सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम? जैसे हमने बताया सोसाइटी में इतने सारे मिथ्स हैं, उसको हम डिस्पेल करके, उसको हम मिथ को कैसे हम हटाएं और हम इसके लिए लाइमलाइट ला सकते हैं। So, कई बार क्या है, रेप इज यूजुअली कमिटेड बाय समवन यू नो। हम लोग, है ना, ये आप इसके बारे में यस तो बोलते हो, नो बोलते हो? रेप और सेक्सुअल अब्यूज होता है यूजुअली जिनको आप जानते हैं वो अब्यूज करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था 92% ऑफ अब्यूजर्स नो द विक्टिम, है ना। सो ये मिथ कई बार है, नो 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 आप स्ट्रेंजर, है ना, आप बाहर नहीं जाएंगे, उसमें नहीं जाएंगे, आपका अब्यूज हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। पर जो घरों में बैठे हैं 92% वो घरों में होता है। सो उसके लिए हमने एक मिथ, उसको, उसके बारे में हमने सोचना है। उसके बाद बोलते हैं कि औरतें तो स्कर्टें डाल लेती हैं, लोग कट टॉप डाल लेती हैं, वो इनवाइट करती हैं, है ना। बिकॉज औरतें भी उतना ही हक है जितना कि और सोसाइटी में और पीपल को, कुछ भी उनकी ही चॉइस है, ये क्या डालें, उनकी चॉइस, उनकी कपड़े तुमको नहीं बताते। और फिर हम ये भी देखते हैं निर्भया कांड में, शी वाज वेयरिंग प्रॉपर सूट, प्रॉपर इंडियन सूट। So and girls, small children, 5 years, 3 years old, 4 years old, they don't know skirt and all thing. It happens. All elderly people, it happens. So this is all again a myth. So then again दूसरा myth क्या, तो यंग गर्ल्स और अट्रैक्टिव गर्ल्स का ही रेप होता है ना, ये भी एक myth है। इसको भी हमने स्पेल करता है, एनीवन जो जो अब्यूजर है वो के पावर और कंट्रोल यूज करते हैं, एनीवन को कंट्रोल एंड और पावर से कर सकते हैं वो कंट्रोल। सो और उसके बाद क्या है, कहते हैं कि ये नो रेप तो इसलिए होते हैं कि आदमी कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर वो कंट्रोल नहीं कर सकता तो आप सुपरमार्केट, बिग बाजार जाएंगे, तो अगर वो कंट्रोल नहीं कर सकता तो वहां भी हो सकते थे। वो कर सकता है कंट्रोल। वो कंट्रोल की बात नहीं है, यहाँ पे पावर की बात है। वो पावर इस्तेमाल की जाती है एनी अब्यूज करने के लिए। सो उसके बाद अगर कोर्ट में केस गया है, कुछ हुआ नहीं है, तो बोलोगे कि ये तो इसने झूठ बोला था, है ना। दैट इज अगेन एक मिथ है। इसका ये मतलब नहीं है कोर्ट में गया है केस, उसको सजा नहीं हुई, क्योंकि वो, ये केस कैसा है, एक पार्टी का दूसरी पार्टी के अगेंस्ट वर्ड्स हैं, है ना। तो बहुत कई बारी जजमेंट में प्रॉब्लम हो जाती होगी, है ना। सो आई बिलीव, सो उस तरह से ये जो कई सोसाइटी में मिथ्स बने हुए हैं, उस मिथ को अगर हम थोड़ा सा भी पर्दाफाश करें, कि फैक्ट लेके आए, फैक्ट में लेके आए, और हम इसका थोड़ा सा, हम इसकी साइलेंस को कम कर सकते हैं हम। सो अब हमारा जो एंड वाले हमारे क्वेश्चंस हैं, किस तरह से हम विक्टिम और सर्वाइवर को रिस्पोंड करेंगे। आपने हमेशा ही पढ़ा होगा, जो भी चीज, किसी भी चीज में आप पढ़ रहे हैं, आइदर वो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आप पीएचडी की, किसी भी, आप बोलते हैं लिसनिंग स्किल होना चाहिए हमारे में, है ना। सो सेम हमारा जो विक्टिम और सर्वाइवर आगे आके आपको बता रहा है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, लिसन करो उसको। सबसे पहला काम है, उसको लिसन करोगे, लिसन करोगे, उसका हाफ ऑफ द, उसको, उसका जो
बिलीफ है उसका आप इंक्रीज करोगे कि लिसन किया है, और वो विक्टिम भी सोचेगा मेरे को हियर किया है, मेरे को लिसन कर रहे हैं, मैं आगे भी बता सकती हूँ, आगे भी मैं अपनी स्टोरी बता सकती हूँ कि मेरे को मदद मिल सकती है। और एक बिलीफ जरूर कन्वे करो, मैं बिलीव करती हूँ और मैं बिलीव करता हूँ जो तुमने बताया सच बताया है, ठीक है। और बच्चे, बहुत ही कम ऐसे बच्चे होते हैं कि जो जो चीजें बना के कहते हैं, है ना, बहुत उनको इतना नहीं आता करना कि वो बना के चीजें बोलेंगे। और उसके बाद क्या है, उनकी जो उनकी स्ट्रेंथ्स हैं, उनको करेज दें, उनकी रिकॉग्नाइज करें, उनके पास स्ट्रेंथ है ना। उनको ये ना करके ओ लोग तुम, तेरे को कुछ करना चाहिए था, तूने क्यों नहीं फाइट किया, फ्लाइट बैक किया, ऐसा किया, ये करके उनकी फीलिंग्स जो आज वो फील कर रहे हैं, वो कहेगी मैं सुसाइडल फील कर रही हूँ, या वो कहेगी मैं एंग्री, मैं अनोयड हूँ, just validate karo, yes, it is true, you are feeling angry now, you are feeling sad now, you are feeling suicidal now, but can I do anything to make you better? क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ कि आप थोड़ा सा बेटर फील करें? सो इस तरह के रिस्पॉन्स अगर हम विक्टिम सर्वाइवर को देंगे तो हो सकता है आगे आने वाली हमारी जनरेशन हमको बताएगी कि हम उनकी मदद करेंगे, हम उनकी सुनेंगे। और एक जजमेंट होता है, हम बहुत जल्दी से जज कर लेते हैं, नहीं नहीं वो तो ऐसा नहीं कर सकता, नहीं वो तो ऐसा नहीं करेगा। प्लीज डू नॉट जज देम। उस टाइम आपसे उम्मीद है उनको, आपने आपको बताया, उन्होंने आपको चुना है आपको बताने के लिए, मीन्स उसको एक उम्मीद है कि आप उसकी मदद करेंगे। तो जजमेंटल नहीं बनिए आप, क्योंकि ऐसा हुआ, क्यों ऐसा, तू वहां क्यों गई, तो ऐसा कुछ किया नहीं, ये चीजें हो गई, किस तरह से मैं आज तुम्हारी मदद करूंगी। और उनको अपने कंट्रोल में दोबारा आने दीजिए। उनकी बात अभी आप मत कहिए, एक बार उनसे सारा सुनिए, वो क्या चाहते हैं, वो क्या पुलिस में जाना चाहते हैं, रिपोर्ट करना चाहते हैं, किसको बताना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। लेट देम रीगेन देयर कंट्रोल एंड बी क्लियर अबाउट योर बाउंड्रीज। ये हम यहाँ पे बहुत ज्यादा हम बाउंड्रीज को हम लोग स्ट्रेस देते हैं, बिकॉज वी आर प्रैक्टिशनर। अगर हमारी बाउंड्रीज नहीं होंगी, हम लोग ये सुनेंगे, मैं आज फ्राइडे है, सैटरडे है, संडे है, शाम को भी मैं करूंगी, नो वे। एक हमारी बाउंड्रीज हो कि मेरा वर्क टाइम है 9 to 5, है ना, मैं ये सुनूंगी, मेरी बाउंड्रीज हो। या मेरे को ये बताया है किसी ने, तो मैं अपनी सुपरवाइजर के साथ जाके बात करूं, क्योंकि मैं अगर ये फीलिंग्स मैं लेके गई किसी की, मैंने सुनी है, तो उसी तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा जो विक्टिम पे पड़ा था। सो अपनी बाउंड्रीज के बारे में क्लियर रहें। आप किसी की मदद कर रहे हो पड़ोस में, आपने देखा है गरीब बच्चा देखा है, आपने कोई काम वाली देखी है, आप अपनी बाउंड्रीज को भी क्लियर रहे, हाँ मैं आपकी इतनी मदद कर सकता हूँ। या सो उनको ये पहले देखो मैं सब कुछ कर दूंगा, ये सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ सब ठीक नहीं होने वाला है। सो आप उतना ही उसको उसको उम्मीद दें जितना आप कर सकते हो, प्लीज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम कह देते हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं, टाइम लगेगा उसको, है ना। सो अपनी बाउंड्रीज को आपने जरूर आपने सोचना है, क्लियर रखनी है अपनी बाउंड्रीज। सीक सपोर्ट, आपने भी सपोर्ट लेनी है। जिस तरह से हमारे पास हमारा क्लाइंट विक्टिम आया, सर्वाइवर आया, और आपका फैमिली मेंबर आया, कोई भी, आप भी सपोर्ट नेटवर्क, इंडिया में इतने सारे साथिया, एक मैं पढ़ रही थी, बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं साथिया। और ना आजकल एजुकेशन में भी, कॉलेजेस में और स्कूलों में ला रहे हैं कंसेंट एज, व्हाट कंसेंट एज इज, किस तरह से कंसेंट का हम इस्तेमाल करें। सो यार सारी चीजें ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि कॉलेजेस भी अब ये जरूर इस तरह के प्रोग्राम जैसे आज आप कर रहे हैं, जरूर ऐसे और प्रोग्राम करिए। और इससे कम से कम एक बात तो शुरू हो, कहाँ से तो शुरू करनी है हमने, है ना। इसको एक डाइनिंग टेबल वाला डिस्कशन लेके आए हम इस चीज को हमेशा से चुप करवा देते हैं। मैंने एक यहाँ पे रिसर्च किया था, उसका एग्जांपल दूंगी। हिंदू टेम्पल है यहाँ पे, मैं जहाँ रहती हूँ सिटी में। सो हिंदू टेम्पल में ऑल मैनेजमेंट कमेटीज, एनी टेम्पल चले जाओ, चाहे क्रिश्चियन में चले गए, चाहे हिंदू में, चाहे सिख में, चाहे मॉस्क में मैं गई, सब में गई, सारों में 99% मैन थे जो मैनेजमेंट कमेटी के थे, जो मैनेजमेंट कमेटी, सो है ना, वन थिंग जो इक्वल हम बात करते हैं। सो वो सारे मैन थे, इंडियन मैन, दे आर ऑल इन 70s, दे आर ऑल इन आइदर or late 60s।
So I said, look, I am from rape and sexual abuse center. आप बिलीव नहीं करोगे, वो एकदम अपनी चेयर से कूदे तो नहीं, वो उन्होंने बोला लड़की क्या बात कर रही है, रेप एंड सेक्सुअल अब्यूज सेंटर। एंड देन बोलता ओ नो नो बेटा, ये हमारी कम्युनिटी में तो नहीं होता है ये। मेरे को पता था वो आंसर यही देंगे, और मैं कुछ स्टडीज लेके गई थी जो हमारी लड़कियों को भी होता है। तो मैंने कहा नो अंकल, आई विश कि ये सच होता, हमारी कम्युनिटी में नहीं होता, बट हमारी कम्युनिटी में भी होता है। तब उन्होंने थोड़ा सा बिलीव किया, बोला या दिस थिंग हैपेंस। सो हम डिनाई कर देते हैं। हम किस तरह से हम रिस्पॉन्स लेते हैं, हम इन चीजों कहता है। वो एक मैन थे अंकल, बोलते हैं कि मैंने बेटा फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, ही वाज इन लेट 70s, फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई एम डिस्कसिंग अबाउट रेप एंड सेक्सुअल अब्यूज। कैन यू बिलीव? अगर हम डिस्कस ही नहीं करेंगे ये चीजें, तो कैसे हम उसका इलाज ढूंढेंगे, है ना? सो हमने इसको डाइनिंग टेबल में लाना है। अब यहाँ मदर्स बैठी होंगी, उनके छोटे बच्चे भी होंगे, प्लीज उनके साथ हम डिस्कस करें, ये चीजें भी हो सकती हैं, ताकि वो उनको एक करेज आए कि ऐसा कुछ हो, वो देख लें ये गलत है, ये कोई अंकल आके कर रहा है या कोई स्कूल टीचर मेरे को ट्यूशन पढ़ा रहा है वो ठीक नहीं कर रहा है, तो एटलीस्ट वो आपको बता सकता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप उन पे बिलीव करके आप ये डिस्कशन करें घरों में कि किस तरह से ये चीजें हो सकती हैं, किस तरह से हमने अपने आप को बचाना है, प्रिवेंशन करना है, वैक्सीन इसकी बनानी है हमने इस पैंडेमिक की। ये जस्ट हम एक ये रिस्पॉन्स मैंने क्यों दिया सेक्सुअल वायलेंस का, क्या रिस्पॉन्स होता है जो जो विक्टिम्स उस टाइम करते हैं, क्यों ये मैं बताना चाह रही हूँ। समटाइम्स हम कहते हैं ओ लुक ये कैसे हुआ, वो फाइट कर सकती थी उस टाइम, उसका रेप हुआ, फाइट नहीं कर सकती थी वो, है ना, भाग सकती थी वो, ये सो बट जो हमारा ब्रेन है, इसमें ये 5 जो रिस्पॉन्सेस हमारे विक्टिम्स और विक्टिम्स हैं, जो 5 रिस्पॉन्सेस उसके आते हैं। आइदर वो फाइट करेगा, निर्भया ने फाइट किया था, पर उसको रिजल्ट क्या मिला था, वी ऑल नो दैट। फ्लाइट, कुछ भाग जाते हैं, कुछ सफल हो जाते हैं फ्लाइट में, कुछ नहीं होते, है ना, कुछ फ्रीज हो जाते हैं, हमारा ब्रेन फ्रीज हो जाता है, ओके ये थिंक हो रही है, मैं सर्वाइवल के लिए ब्रेन हमारा फ्रीज कर देता है, हमको कुछ याद नहीं रहता। हम कई बार बोलते हैं ना एक्सीडेंट हुआ था उनका, कार एक्सीडेंट हुआ, सब कुछ भूल गए, बिकॉज ब्रेन ने उस टाइम फ्रीज कर दिया था, मैं कुछ भी याद नहीं रखूंगी, मेरा सर्वाइवल, मैं सर्वाइव करूंगी, है ना। फ्लॉप, कई बार हम फ्लॉप हो जाते हैं, कुछ मेरी बॉडी में जैसे जेली की तरह हम हो गए, फ्लॉप हो गए, ये बॉडी का रिस्पॉन्स है, हमारा कुछ कंट्रोल नहीं है ये। कई बार फ्रेंड, हम बोल देते हैं कि ओ लुक वो तो फ्रेंड थी उसकी, वो तो उसके साथ जाती थी, कैसे कह सकती है वो। कई बार सर्वाइवल के लिए उसको फ्रेंड बना लेती है, जैसे कोई अंकल है उसका करने वाला, उसका कजन है, कुछ है, उसको पता है इतना बड़ा बंदा है, ये फ्रेंड बना लेते हैं। सो ये 5 रिस्पॉन्सेज हमारा ब्रेन उस टाइम देता है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है ये। एंड हम अगर किसी को जज करना चाहें, पहले हम ये 5 रिस्पॉन्सेज सोच लें, ये उसने इसलिए फाइट नहीं किया, डर रही थी वो, उसको पता था मैं फाइट किया तो मर जाऊंगी, मैं भागी तो कहां तक भाग सकती हूँ, मेरे को और करेंगे ऐसे, है ना। सो ये 5 रिस्पॉन्सेज हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली करता है वो। सो दैट इज फॉर योर इंफॉर्मेशन एंड योर नॉलेज। आगे आप किसी को जज करोगे तो आपको ये जरूर याद आएगा, नहीं मैं जज नहीं करूं इसको, दैट वाज ब्रेन्स रिस्पॉन्स। ओके, सो अब हमारा क्वेश्चंस की बारी है, बट उससे पहले अगर हम आपको क्वेश्चनेयर दें, आपको अरुणा मैडम शेयर करेंगी, सो आप Yes, we are sharing in a Google form, ओके and participants are to fill this form and register. सो व्हाट शैल वी डू नाउ? क्वेश्चन आंसर सेशन के दौरान वो लोग अपना फॉर्म भरते रहेंगे और अपने रिस्पॉन्सेज में हमारे साथ रजिस्टर करेंगे और फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे। Okay, that is very great. Okay, Mm. so any question? And एक और चीज है, no question is a silly question. Please, जो भी आपके मन में आया है उसको ये मत सोचना silly, ओ ये क्वेश्चन तो silly है, मेरे को नहीं पूछना चाहिए। प्लीज आप पूछिए, कोई भी silly क्वेश्चन नहीं है। कई बार उसके आंसर हैं जो और पीपल को भी मदद मिल सकती है, किसी और को भी सपोर्ट मिल सकती है।
चैट बॉक्स में कुछ लोग क्वेश्चंस डाल रहे हैं। पहला हम्म। क्वेश्चन ये है कि व्हाट कैन वी डू इन द अपब्रिंगिंग ऑफ गर्ल चाइल्ड टू सेव हरसेल्फ? वैक्सीन, एवरीथिंग का एक एजुकेशन इज द की। एजुकेशन, इट डजंट मीन एजुकेशन MA BA PhD हो। एजुकेशन इज एजुकेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। जैसे हम ये बात कर रहे थे, हमारे खाने के टाइम में, हमारे घर बैठने के टाइम में जब डिस्कस करते हैं, हम हीरो हीरोइनों की बात करते हैं, हम और बातें करते हैं, ये बातें करें कि हमारे समाज में, बेटा आप इस समाज में आई हो, इस समाज में ये चीजें हो सकती हैं। क्योंकि हमने ये पहले सोच लिया था सेक्स एजुकेशन देंगे तो हमारे बच्चे ज्यादा ज्यादा सेक्स उसमें हो जाएंगे, हमने ये बंद कर दिया। द मोर नॉलेज वी हैव, द मोर पावर वी हैव। नॉलेज इज अ की, नॉलेज इज अ पावर। जितनी आप नॉलेज बच्चों को दोगे, उतना ही बच्चे उसी तरह से रिस्पॉन्स करेंगे। आई रिमेम्बर, और मैंने अमिताभ बच्चन जी का लेटर भी पढ़ा हुआ है। आप रियली, आप सारे लोग अगर आप करो, गूगल करोगे तो आपको उनका लेटर मिलेगा। उन्होंने अपनी 2 पोती और नाती दोनों को लिखा, वो 6-7 साल की थी तब। सो इतना अच्छा लेटर है, मेरे पास अब नहीं है, बट मैंने उसका पहले एक एक वर्ड उसका याद था। उसने क्या लिखा है कि बेटा ये समाज है, आप जिस समाज में जा रही हो, आपको हो सकता है इक्वल रहने के लिए आपको आपको मौका ना मिले, बट आपने ये शक्ति दिखानी है। आपने ये परवाह नहीं करनी लोगों की कि 4 लोग क्या कहेंगे। आप जो चाहें आप वो कपड़ा डालें, आप जो चाहें, जिसके साथ चाहें शादी करें, नहीं करें, वो आपकी चॉइस होनी चाहिए। सो आप जरूर अमिताभ बच्चन जी का लेटर पढ़िए, आप पेरेंट्स जिन्होंने ये पूछा है, और अदर पेरेंट्स, रियली आप आपको लगेगा कि हमने किस तरह से अपने बच्चे को एजुकेट करना है, शर्म करके नहीं। हम हमेशा ये बात, ऐसा जो सेक्स का नाम आता है, हम सोच लेते स्वेयरिंग वर्ड है ये, है ना, ये स्वेयरिंग वर्ड नहीं है, इसको हमने एजुकेट करना, एजुकेशन में लेके आना है। सो अगर हमारे बच्चे बचपन से ही जानते होंगे तो हम थोड़ा सा उसके लिए प्रिवेंशन तो कर सकते हैं। यहाँ पे जो यहाँ हमारे यूनाइटेड किंगडम में जो एजुकेशन का सिस्टम है, हमारी टीम एक जो चिल्ड्रन के साथ काम करती है, वो बच्चों रिसेप्शन मीन्स 5 years old, 5 years old बच्चों की क्लास में जाके इस तरह का हम वर्कशॉप बनाते हैं 5 years old की तरह। देन दे गो 6 years old, 7 years old, 8 years old, एवरी ईयर उनको हम ये बताते हैं, और टीचर्स उनको आगे करते हैं। हम लोग 1-1 आवर का उनको वर्कशॉप देते हैं, एंड टीचर्स दे डू एक्सपैंड दैट नॉलेज। सो एवरी चाइल्ड इन हियर दे नो what their rights are, they know where to go, they know, look, 5 things हम उनको बताते हैं कि कहाँ पे आप जाओगे, आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है किसको बताओगे, 5 network, safety network. So there are lots of things parents can do. Just knowledge is a power. Give that knowledge and don't feel hesitate that, like I told in late 1970s, that man said, first time I am discussing about this thing. I think that is, I would say, that question. you're right मंजीत कि हमें बातचीत करनी चाहिए। हम तो ऐसी कंट्री में रहते हैं कि अगर बेटी को या मदर को इवन सेफ्टी नैपकिन, सैनिटरी नैपकिन तक मंगवाने हो तो वो वेट करती है कि मदर को ही कहूंगी, ब्रदर या फादर को नहीं कह सकती कि वो लेके आए। और हमारी सोसाइटी देखो कि अगर वो नैपकिन पैक करके दे रहा है तो उसको ब्लैक लिफाफे में देगा, वो ट्रांसपेरेंट लिफाफे में नहीं देगा, एज इफ उसको खरीदना और बेचना भी क्राइम हो गया है। ऐसी सोसाइटी में जब बच्चा अचानक से पूछता है अच्छा ये रेप क्या होता है, तो मदर और फादर क्या करते हैं, उसका ध्यान डाइवर्ट करते हैं किसी और पे ताकि वो बात ना करे। कोई एडवर्टाइजमेंट आ रही होती है तो एकदम से चैनल चेंज कर दिया जाता है। एंड यू आर वेरी मच राइट कि हमें इसके बारे में बात करनी पड़ेगी कंसीडरिंग द एज ऑफ द चाइल्ड, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ क्वेश्चन यही डाल रहे हैं कि व्हाट इज द राइट एज फॉर द सेक्स एजुकेशन एंड व्हाट इज द राइट एज फॉर द सेंसिटाइजेशन ऑफ दीज थिंग्स। Every age is a right age.
यू नो आप ये सोचिए, जब बच्चा होता है तो जैसे बोलना शुरू किया, हमने क्या सिखाते हैं हम उनको, इंडिया में ज्यादातर ABC 1 2 3 है ना, ओके, बट उसके अलावा हम पार्ट्स ऑफ द बॉडी भी सिखाते हैं। कितने पेरेंट्स हैं, आज मैं भी हूँ, आप लोग पेरेंट्स हैं, अपने दिल पे हाथ रख के कहिए, हमने सारे पार्ट सिखाइए, ये तुम्हारी उंगली है, ये तुम्हारा थंब है, ये आईज है, ये ईयर है, ऐसे है। किसने सिखाया, किसने बताया कि यहाँ पे तुम्हारा वजाइना है, यहाँ पे तुम्हारे हिप्स हैं, यहाँ पे नहीं सिखाते हम। जो एंड वी नो, यू आर साइकोलॉजिस्ट, आई एम साइकोलॉजिस्ट, जो चीजें नहीं बताई जाती वो ज्यादा उस पे हमारा ध्यान जाता है। क्यों इसको हमने इतना, वो क्यों माँ बाप ऐसे, है ना, हम उस चीज को ना करके सारी चीजों को बताया हमने पार्ट्स। सो आई थिंक दैट्स राइट एज, फ्रॉम देयर आप सारे पार्ट्स बताएं, है ना। सो इस तरह से हम एजुकेट करें एवरी ईयर। ये नहीं है कि हमने एक रेप ही सिखाना शुरू कर दिया 5। सो आपने ये देखना है कि आपके बच्चे किस तरह से सवाल जो आप पूछ रहे हैं उसी तरह से, यस, है ना। सो आप छोटे, जैसे हमने बताया 5 years old, हम ये बताते हैं कि आपका, आप एक हैंड हम उनको प्रिंट आउट देते हैं कि आप 5 people सेफ्टी नेटवर्क, आपको स्कूल में कुछ हो जाता है तो आप किसको बताएंगे, कौन सा टीचर होगा। आप घर में कुछ हो जाता है, आपके घर के ही कोई मेंबर है, जॉइंट फैमिलीज हैं, उनमें से कोई कुछ करता है, आप कहाँ जाओगी, किसके पास जाओगी। सो ये नेटवर्क उनको पता होता है। सो इस तरह से छोटी छोटी चीजें डाल के एवरी ईयर उसको ग्रेजुअली आप इंक्रीज कर सकते हैं, है ना। तो कोई भी एज आप सेक्स एजुकेशन आप दे सकते हैं। इज दैट ओके? हाँ, यस। एक और क्वेश्चन है मुझे कि अगर कोई सर्वाइवर है और सर्वाइवर ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, बट वी नो द पेन, हम उसकी हेल्प कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है आगे चलकर उसको प्रॉब्लम होने वाली है। Yeah. So सर्वाइवर है, दे हैव डिसाइडेड दे डोंट वांट टू रिपोर्ट, या और एक और भी हाँ बात है, कोई जरूरी नहीं है सारे रिपोर्ट करते हैं। सर्वाइवर का हम क्या कर सकते हैं, उसको कैसे हमने थ्राइवर बनाना है। हम एक काउंसलिंग है हमारा, टॉकिंग थेरेपी है ना। सो एक वो काउंसलिंग आई थिंक उनको जरूर लेना चाहिए, हीलिंग प्रोसेस, और उनको कन्वे करते रहना चाहिए। उप्स, दैट्स मी। ओहो, ये मैंने ना ये अपनी, अच्छा, सो ये मैं इसलिए मैंने ये निकाला है कि उस सर्वाइवर को ये 4 चीजें आपने जरूर कहनी है, और ये हमारी कंपनी का ये ईथो है ना। आपने उनको लिसन करना है, आपने उनको बिलीव करना है, बार बार कहना है ये आपका फॉल्ट नहीं था, इट वाज नॉट योर फॉल्ट एट ऑल। जो फॉल्ट था उस रेपिस्ट पे जाना चाहिए, उस अब्यूजर पे जाना चाहिए। यस, उसको बिलीव, ओके आपने डिसाइड किया है, ओके जैसा ही आपने डिसाइड किया आपका डिसीजन है, मैं आपके किसी भी, जो भी आपके डिसीजन है, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। आप ये चीज एक कन्वे कर सकते हैं, और उसको सेफ्टी आगे उसको ना हो उसके लिए सेफ करना है। और उस तरह से अगर उसको एक बार बिलीव का आप बिलीव करोगे, हमने एक हमारे क्लाइंट्स कई बार बोलते हैं, हम बोलते हैं आई बिलीव यू, एक सेंटेंस पे वो उसका जो एक मेंटल हेल्थ है ना अप आ जाता है। आई बिलीव यू, इसमें बहुत बड़ी ताकत है। आप उसको बार बार कहेंगे कि आई बिलीव यू, वट एवर हैपेंड इट वॉज नॉट योर फॉल्ट, इट वॉज नॉट योर फॉल्ट, नाउ यू कैन मेक चॉइस। आपने काउंसलिंग जरूर लेना है। मैंने जैसे अभी पीछे एक बताया था कि मैं एडल्ट्स के साथ काम करती हूँ। कुछ विमेन है जो चाइल्डहुड उनको सेक्सुअल अब्यूज हुआ था, उन्होंने कुछ नहीं किया, एज कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन अब जिस एज में आई उनको डिप्रेशन, उनको एंजाइटी, उनको उनको इतनी सारी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। कुछ विमेन तो अभी हमारे मेंटल हेल्थ डे केयर में भी उनको जाना पड़ा, बिकॉज ऑफ उनका जो पास्ट ट्रोमा था, ट्रोमा हील नहीं हुआ, है ना। सो ट्रोमा हील करने के लिए आई थिंक ट्रोमा थेरेपिस्ट इंडिया में होंगे, जरूर होंगे, आजकल हर शहर में भी होते हैं। आप जरूर ट्रोमा के लिए आप उनको उनकी जर्नी शुरू कीजिए,
और देखिए आप कैसे वो थ्राइव करते हैं, और just open discussion with them and accept them. Okay, whatever happened was not your fault. I accept you. है ना? So ये 4 चीजें उनको आप अगर ये मैसेज दोगे तो आप देखोगे आप उसकी हीलिंग जर्नी किस तरह से जाएगी। एक एग्जांपल दिया फार्मर्स के साथ, आज कितने फार्मर्स इकट्ठे होके उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। आई डोंट नो क्या है वहां पे, कुछ है बट पीपल सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, आवाज उठा रहे हैं। आई थिंक ऑलवेज ये है, आवाज उठाएंगे तभी तो सुनी जाएगी, है ना, जितनी लाउड उठाएंगे उतना लाउड सुना जाएगा। लाउड मीन्स कि हम जैसे यहाँ पे कुछ ऐसा होता है तो हम लोग क्या होता है साइन पिटीशन साइन करते हैं, है ना, कि ये चीज होनी चाहिए और पार्लियामेंट में जाना चाहिए ये वाले केसेस। अगर हम ऐसा कुछ शुरू कर दें और हमारे हैशटैग बना के इट इज नॉट ओके, इट इज नॉट ओके, ऐसा हैशटैग आप अपने कॉलेज का बनाइए, कॉलेज के में स्टूडेंट्स को बोले क्या ओके नहीं है, इट इज नॉट ओके हैशटैग। तो ऑल पीपल आजकल सोशल मीडिया में जाते हैं, यूज करते हैं उसको, एक हैशटैग बना के कि ये चीज आज हुई है, इट इज नॉट ओके, दिस जजमेंट वाज नॉट ओके। हम कैसे आवाज उठाएं? सो ये आवाज जाएगी पार्लियामेंट तक, है ना। सो इनके यही तरीके हो सकते हैं। आप अगर ये आवाज, लेकिन वो आवाज उठाई जाए, जितना ज्यादा हम आवाज उठाएंगे उतना ही सुना जाएगा, है ना। आज नहीं तो कल ये सुना जाएगा एटलीस्ट सपोर्ट। तो जो मान लो फार्मर्स, आई डोंट नो उनके साथ क्या है, क्या उनकी मांगे हैं, बट एटलीस्ट आज वो ये सोच रहे हैं, सारी दुनिया उसके सपोर्ट कर रही है ना। सो गवर्नमेंट भी, है ना। सो ये चीजें हैं, अगर आप ज्यादा लोग खड़े हुए हैं इट इज नॉट ओके, उसके लिए बहुत सारे आपको रीजन आएंगे, इतना अच्छा लगेगा। एक पूरा बनाए, रिपोर्ट बनाए उसकी, इट इज नॉट ओके, क्या ओके नहीं है, लड़कियों के साथ ऐसा होना, छेड़छाड़ होना, और ये ब्लेम लगा देना कि स्कर्ट का। इट्स वेरी इजी टू ब्लेम विक्टिम बिकॉज इट्स वेरी वेरी इजी है। और ये सोचो कि ये तो स्कर्ट डाली हुई थी, जो लड़की ने पूरा सूट डाला हुआ था उसके साथ क्या हुआ। So this is the whole victim blaming. I think we need to make sure this blame should go to the abuser, not to the victim. हम abuser को भूल जाते हैं, victim को ओ लोग उसके साथ हुआ। I think that's the only key I can think. But I do hope young people will write something, will do something. They might have ideas of how they will take this, how they want their colleagues or their fellows, how they want to treat them. I think that's the key, I think. Dr. Manjeet, actually in India, in child rearing practices or in the socialization of male, we are not talking about the sex education and the rights of the female in their families. उनको हम कहीं superiority देके रखते हैं, you are male, you can do everything. और अभी आपने भी बोला कि लड़की को तो हम कह देते, लड़के से तो हम पूछ लेते हैं कोई लड़की पटाई है क्या, पर अपने घर में हम कभी भी किसी लड़की को नहीं कहते कि कोई लड़का पटाया है क्या, और ना ही हम इस चीज के बारे में बोलना अच्छा समझते हैं। पर डिफरेंस चल रहा है, इंडियन सोसाइटी का डिफरेंस तो इंडिया में रहते हुए हमें पता चल रहा है। आपके वहाँ क्या ऐसा कुछ चल रहा है फैमिलीज में, चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस में, कि दोनों को बराबरी किस तरीके से सिखाई जाती है कि यू आर टू रिस्पेक्ट योर फीमेल काउंटर पार्ट, और यू आर टू रिस्पेक्ट योर सिस्टर, you are to respect the friends of your sister because they are girls? Is there any practice? That's a very, very good question. We have some community, Indian community here. Those they came either 60s or 70s. They migrated from India. They live here, and white population, and majority is like white population. उनका ये नहीं है लड़की लड़का, उनका है इंडिविजुअल, ये फैमिली मेंबर है, लड़का है लड़की, उसको कुछ नहीं पता लड़की लड़का, ऐसा एजुकेशन उसका अलग देना है, उसका अलग देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको ये सिखाया गया है लड़का लड़की दोनों बराबर, ऐसा बताया नहीं कि लड़की हो गई रोना है, लड़का हो गया तो सेलिब्रेट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया। ऑल आर इक्वल। और उसके बाद क्या होता है कि बच्चे, है ना, अपनी उनको उनके राइट्स होते हैं,
उतना ही लड़की को होगा, उतना ही लड़के को होगा। So they it's quite a different society. But जो हमारी यहाँ पे migrated society है, Indian society, still उनमें ऐसा ही है जो वो इंडिया से, वो जो हमारे एटीट्यूड्स थे अभी भी वो कहेंगी। अभी जो यहाँ पे मेरी एज की जो विमेन है, मेरे कोलीग्स भी हैं कुछ, और कुछ जो इंडियन विमेन है, इवन बोर्न यहाँ पे हुई थी, उनको एजुकेशन नहीं दी गई। 16 साल के बाद शादियां कर दी उनकी। एवरी वुमेन 16-17 साल में शादी हो गई यहाँ पे, इस कंट्री में रहते हुए भी। और लड़के यूनिवर्सिटियों में गए। कारण क्या हो गया? लड़कियां पोर हो गई क्योंकि पढ़ी नहीं वो बेचारी। जो फॉर्मल एजुकेशन जहाँ यहाँ पे नेसेसिटी है 16 साल, वो 16 साल तो करवाना ही करवाना है। उसके बाद हायर एजुकेशन हुआ ही नहीं लड़कियों का। कुछ लड़कियों ने बाद में ग्रेजुएशन किया, बाद में हायर एजुकेशन पे गई, बट मोस्ट ऑफ देम हैव नो एजुकेशन, नो फर्दर हायर एजुकेशन। सो वो सोसाइटी हमारी है, उसको हम जाके कई बार एजुकेट करते हैं हम जाके, और फिर वही आता है चॉइस। ये चॉइस मेरे लड़का को मैंने पढ़ाया है, मेरे लड़के के लिए लड़की ढूंढना मेरा है, मैं ढूंढूंगी। सो इस तरह से हम बहुत सारे केसेस यहाँ देखते हैं। बट white population, they don't have any such kind of thing. So उनको बस इंडिविजुअल है दोनों, एक बोन हुआ है, लड़का हुआ है, लड़की हुआ है, सेम कपड़े, सेम उनका जो भी खर्चा है सेम, इस तरह से आएगा। सो कोई भी भेदभाव हम नहीं देखते यहाँ पे लड़के लड़की में। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि इंडिया जैसे कंट्री में जहां मेंटल हेल्थ के ट्रीटमेंट के लिए, मेंटल इलनेस की ट्रीटमेंट के लिए लोग साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स के पास जाना पसंद नहीं करते हैं। और बहुत सारी जगह पे क्या देखा जाता है कि लड़के को कोई प्रॉब्लम है तो फैमिली में डिस्कस कर लिया, इसकी शादी कर दो ठीक हो जाएगा। तो ये चलता है। एक तरफ तो कहा जाता है शादी कर दो तो मेंटल इलनेस है, मेंटल हेल्थ की तरफ चला जाएगा। और दूसरी तरफ आज हम बात कर रहे हैं मैरिटल रेप की, कि यहाँ पर वाइफ की कंसेंट की जरूरत है। डू यू थिंक कि फैमिली में, मैरिज में ये चीजें इतनी जल्दी लोग इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, ग्रैस्प कर लेंगे, वो भी इंडिया जैसे कंट्री में? क्या आपको ये डिस्पैरिटी अपने यहाँ भी दिखाई देती है जहाँ आप रह रहे हो, जहाँ आपकी सोसाइटी है? नॉट ओनली इन माइग्रेटेड सोसाइटीज, बिकॉज यू आर डीलिंग विद पेशेंट्स और सर्वाइवर्स फ्रॉम द एवरी रीजन ऑफ योर कंट्री। तो व्हाट इज द डिस्पैरिटी? Disparity means like rape in relationship, in marital relationship. Marital relationship, yeah. So here is a very, very strong law against, you have to have consent, either wife, husband. Yeah, so even if you are in a relationship, boyfriend, girlfriend, you have to have consent. So consent age here is 16 years old. 16 years can give consent. Yeah, so number one is consent, this one. And two is consent. Here we are taught very, very broadly how consent happens. One day you gave consent, and second day if boy comes, so you gave yesterday consent, today is no. Every time they have to have consent when they have sexual relationship. Yeah, and marital relationship is same treatment as rape happened in known relationships. If say wife can go, look, my husband raped me, or my husband had sex with me without consent, it is the same case as any rape cases. So it is quite strong here, that law, and it applies as well. But I was reading in India, there's a 16 to 18. India is consent age is 18, but lots of girls, you know, that more than 47% of girls are married before the age of 18 in India, and consent age is 18 in India. So it's quite contradiction in saying. So they made a law in India, 16 to 18. First they said, no, this is a wife, he can treat
as he likes. That's his commodity. That's his, he can have sex. He doesn't have to have consent. Yeah. So, but then this case went to court. I think court allowed, even if this girl is under 18, she's married, she doesn't want to have sex, that is called rape. So that's Indian court has done that. And but as we know, theory and practice is completely different. This girl won't go to the court. That's a simple thing. Girl want to go, but girls' parents or girls' society, girls' community will say, no, why you are going? Your husband will give you shelter, will give you roof over your head, these things. So these kind of disparities I see here, because here they are very clear, very, very clear. Without consent, you won't have. So even young people know the consent. That's the difference I see. ओके वैसे तो आजकल थोड़ी मीडिया भी अवेयरनेस लेके आ रही है इन चीजों में. जैसे अभी थोड़े दिन पहले एक मूवी आई थी पिंक, और उसमें एक बहुत अच्छा डायलॉग था, नो मीन्स नो, अंडरस्टैंड नो, यू मस्ट नो, नो मीन्स नो. बट स्टिल द अवेयरनेस इज एट अ वेरी स्मॉल लेवल. और कितने लोग उसके बारे में आगे बात करते हैं और समझते भी हैं, और समझने के बाद कितना अप्लाई करते हैं, अभी वहाँ डिफरेंस है. तो एक और क्वेश्चन है, हालांकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पर उनका 2 बार ये बीच में क्वेश्चन आ गया है कि कुछ एक फिक्स सा कंक्रीट बताए कि हम मेल एटीट्यूड को मैरिटल रेप के लिए किस तरीके से चेंज करें. रिस्पेक्ट ईच अदर एंड ट्रीट इक्वली. जस्ट लाइक गिटार को हमने ऐसे करा है, एक औरत को भी सोचे, ये भी, वो कहते हैं औरत तो एक जननी है, औरत ने जन्म दिया है, उसकी माँ ने एक मेल मेंबर को जन्म दिया है, जो एक आज हस्बैंड एटीट्यूड और मेल एटीट्यूड है कि हम किस तरह से करें. सो मेल को ये समझना चाहिए, ठीक है मेरी मैरिज इसके साथ हो गई है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये इस लाइफ को मेरे ही हाथ में है, ये इसका भी तो कोई राइट है. सो अगर हम यहाँ इक्वालिटी पे आ जाते हैं, तो ये मेरी वाइफ है, ऑल्दो यस. सो अगर उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, और एटीट्यूड अगर अपने आप आएगा कि ये एक रिस्पेक्टफुल चीज है, ये ऐसी चीज नहीं है कि हाँ औरत है, औरत ही है ना तेरी, जो तेरा जैसे जैसे बोलना भी कई बार, ये हमारे जो डायलॉग्स हैं कई बार, तेरा तो जूती उसके हैं, और कितना सारे फिल्मों में यही दिखाया जाता है कि औरत तो ऑलवेज लोअर है उससे. औरत, आदमी का पूरा हक है वो औरत को, क्योंकि औरत को वो शेल्टर देता है. और आजकल वो भी चेंज हो गया है, औरत भी उतना ही कमाती है आजकल, है ना. सो आदमी को ये सोचना चाहिए कि जो आज मैं कर सकता हूँ वो भी कर सकती है ना. सो उस तरह से एक रिस्पेक्ट लेके आएगा. आई थिंक रिस्पेक्ट से ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता कैसे एटीट्यूड. और एक और भी है, हमारी जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, जो हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे जो पूर्वजों ने बताया, आदमी तो है ना परमेश्वर है. आज भी हम करवा चौथ का व्रत रखते हैं. आई जस्ट स्टिल डोंट नो भाई, हमको उनकी आयु की जरूरत है, उनको नहीं है. सो इस तरह की जो चीजें अंदर से ही हमारी अपने आप लेके जाती हैं ये चीजें. मैं इसके साथ फोर्स कर सकता हूँ क्योंकि मेरा अधिकार है, ये किसी ने रोका ही नहीं. इवन उसने माँ बाप को भी देखा होगा, माँ बाप उसके अपनी मदर के साथ कैसे ट्रीट करता है, और फोर्स उसने देखा है, एक फोर्स, क्योंकि हमने वो बताया ही नहीं कि ये तेरे राइट्स हैं. इवन मैंने चिल्ड्रन का देखा है. अरुणा, आपने एक क्वेश्चन पूछा था ना, मैं अब उसका जरूर दूंगी. इवन चिल्ड्रन है हमारे इंडिया में, जो चिल्ड्रन है, हम सब सोचते हैं हमारा चिल्ड्रन इस स्कूल में जाएगा, इसमें करेगा, हमारा वो एजुकेशन लेगा, इवन दो उसका इंटरेस्ट है नहीं है, हम लोग उसकी कभी पूछते ही नहीं है ना. सो उस तरह से अगर यही हमने, हमारे कंट्रोल में है हमारे बच्चे, वो ही बच्चों ने देखा है, और फिर पैट्रियार्कल सोसाइटी में देखा है कि लड़के का ज्यादा, बिकॉज फादर का कंट्रोल है यहाँ पे, फादर ये कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ. आई थिंक दैट्स कमिंग फ्रॉम पैट्रियार्कल सोसाइटी, फ्रॉम फोर्स. वी हैव टू हैव फोर्स.
औरत है, नहीं बोलेगी, है ना? सो इस तरह की चीजें हैं। So we had to stick to a term that charity begins at home, कि घर से ही हम शुरुआत करें। और एटीट्यूड है, देखो एटीट्यूड बनने में इतने सदियां लग गई, और हम पेशेंट भी रहे कि ये जरूर चेंज होगा। आज मैं क्या कर सकती हूँ एटीट्यूड चेंज के लिए, कल क्या करूं, 1 हफ्ते में क्या करूं, 2 हफ्ते में क्या। सो दैट इज plenary we have to have, or all people, those who are watching, those who are male, females, please just think about कैसे एटीट्यूड चेंज होगा, कैसे हाथ से हाथ दोनों मिला के चलोगे तो सोसाइटी किस तरह से होगी, हमारे बच्चे किस तरह से होंगे, है ना? I think that's the way. The government of India is also working. For example, they are having Central Social Welfare Board, Shakti Shalini Group, and Sakshi Group, which is working for the Violence Intervention Centers, All India Women Conference, and Saheli, a women organization. Even in the educational setups, we are having some committees or groups which are working for this. For example, in our college, we are having women's cells which are working for the rights of the girls against the sexual violence and this. And even we are having with the support of district administration, we took the girls to download a particular app which is called Durga Shakti app, so that they should get the help 24/7 if they face any type of problem. Every teacher is there, but question वही आता है कि कौन आता है अपने बारे में बात करता है, तभी हम उसकी हेल्प जो है वो कर पाएंगे। So that's the theory and practice में difference है ना? I think when we give them these kind of messages, 4 messages, I will hear you, I will respect your choice. आप पुलिस को नहीं बताना चाहती, रिपोर्ट नहीं करना चाहती, कोई बात नहीं, आप हमारे पास आ सकती हैं विदाउट एनी जजमेंट। कोई हम जजमेंट नहीं करें, आप आई हैं, आपका जो चॉइस है उसकी मैं रिस्पेक्ट करूंगी, सो ये दे के उससे फिर लड़कियां एक वो ना वर्ड ऑफ माउथ एक जाके बोलेगी नहीं लुक मैं है ना जजमेंटल कोई नहीं था, मैंने अपनी बात बताई, इवन दो वो रिपोर्ट नहीं किया, इट डजंट मैटर, उसने रिपोर्ट नहीं किया, बट आज उसने उससे निकाल दिया और उसका मेंटल हेल्थ तो ठीक रहेगा, है ना? हो सकता है आगे एम्पावर हो, कि हमने यहाँ भी देखा है कई लड़कियों को, जैसे इंडियन बैकग्राउंड एथनिसिटी वाले, सो वो कई बार उनको एम्पावरमेंट हुआ, उसके बाद वो कोर्ट में गई यहाँ पे, सो इट कैन गो एनी टाइम, है ना? सो 10 साल पहले भी हुआ है, कुछ 15 साल पहले भी हुआ है। सो आई थिंक ये मैसेजेस आप दोगे, आई बिलीव यू, वट एवर यू से, आई बिलीव you can make that, more and more girls will come, even have topic, even discuss, I have seen when you do workshops like this, you do workshop in a group 5, 6, 7 girls or 10 girls, then these questions come up. In a group we know that group always outcome comes, group may one girl will speak, another girl will speak, and so they will have like support each other, so that can happen, and more girls will come and more girls can tell their kind of what they are going through, and then you will know where they are coming from and where you will tackle these, so you have this authority in college. I think just one word is I believe you. It's just it's a magic word. I believe you. Yeah. Okay, thank you Dr. Manjeet. यूजुअली हम जब किसी ऐसे वर्कशॉप को, किसी सेशन को कंक्लूड करते हैं, तो हम बहुत कुछ बोलना पसंद करते हैं, जो हमारा की नोट स्पीकर होता है उसके बारे में, टॉपिक के बारे में, बट आज के टॉपिक के बारे में और आज आपके व्यूज के बारे में आई एम स्पीचलेस, रियली आई एम स्पीचलेस। आपने इतना कॉम्प्रिहेंसिव ये टॉक दिया है, इतने थोड़े टाइम में इतना खुल के बोला है कि जो ना भी शायद समझना चाहता हो उसको भी समझ आ गया होगा। वो 2 वर्ड से अगर उसने सुनना शुरू किया होगा तो कंटिन्यूस उसका इंटरेस्ट अब तक बना हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स डॉक्टर मंजीत। नाउ फॉर पार्टिसिपेंट्स, आई ऑल्सो थैंक यू फॉर योर पेशेंस हियरिंग एंड फॉर योर क्वेश्चंस, योर इंटरेक्शंस। और आप
इसके बाद भी कभी अगर आप डॉक्टर मंजीत से बातचीत करना चाहें, कोई क्वेश्चन उनको देना चाहें, तो उनकी ईमेल आईडी हम आपसे शेयर कर देंगे। आप उनको पर्सनल भी क्वेश्चन है वो लिख सकते हैं। उन्होंने एक क्वेश्चनर अभी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, आप उसके आंसर्स देके वो गूगल फीडबैक फॉर्म जो है हमें जो है सबमिट कीजिए। उनके रिजल्ट्स हम आपको कल बताएंगे और उसके लिए हम इस सर्टिफिकेट भी जो है आपको देंगे। और कल हमारे साथ रहेंगी डॉक्टर प्रोमिला बत्रा। कल का सेशन भी हम 12:30 पे ही शुरू करेंगे और आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं। Once again, thank you, Dr. Manjeet. Thank you very much. It's my Okay. pleasure. Yeah, thank you very much, and wish you all the best for the Thank new, you. we have challenge today, and it's our beginning today. Thank you, Dr. Manjeet. Thank you. Thank you very much, and wish you all the best. Thank you. Thank you very Thank you much. very much.